Gentlemen, it's my pleasure to introduce today's resource person, Dr. Eram Khan, Associate Professor at the Institute of Advanced Studies in Education, Jamia Millia Islamia. Dr. Eram Khan, in fact, no need to say, is very learned. If you see her profile, in fact, MSc and PhD in botany, then MA in sociology and education, PhD in education. And besides these degrees, she has lot of diploma degrees as well. For example, quality research methods. This degree she has obtained from University of Amsterdam. Then one diploma in feminism and social justice. She has obtained it from University of California. Introduction of philosophy. This course she has obtained from University of Edinburgh. Similarly, psychological first aid from John Hopkins University, USA. The science of well-being from Yale University, USA. And inclusion in the workplace. I mean, all these are diploma degrees that she has obtained from University of Pittsburgh. So if you see her academic journey, in fact, she worked, I think, for more than 4 years as the associate editor at one of the best publication in India, that is Prentice Hall of India. So where she looked after the books related to the science and, pedagogy of science. Then she worked as an assistant professor at District Institute of Education and Technology, Daryaganj, Delhi. There she worked, I think, for 3 to 4 years. Then she came to National Council for Educational Research and Training. There is one institute, Central Institute of Education Technology. There she worked for as MOOCs coordinator, and for so many years she was associated with this institution. Further, she worked as senior consultant at National Council for Educational Research and Training, NCRT. Then she joined Jamia Millia Islamia as an assistant professor and finally promoted as associate professor. Dr. Eram has contributed a lot so far as, content development. So various MOOCs courses she has designed that was conducted by IIT Madras and IIT Kanpur, National Institute of Educational Planning and Administration, NIPA, New Delhi. Then she was a key member at Diksha project of NCERT. She has recorded so many of her videos for the Swayam Prabha channel of the Government of India. She has worked for National Institute of Open Schooling, NCERT, Regional Institute of Education, Bhubaneswar, Azim Premji University. I mean, all these universities, she has been associated as MOOCs coordinator, and she has trained, I think, almost 500 teachers as master trainers, which was a very flagship program of NCERT. That's the most important contribution of her. She has written 16 books. She has contributed 26 chapters in edited books. She has written 52 research papers, and these research papers have been published in national and international journals, and has delivered more than 100 lectures at various teachers training programs throughout the country. I think more than 50 papers she has presented at various national and international seminars, and more importantly for me, in fact, she has organized dozens of teachers training programs, and at such a young age, I think it's very admirable. Besides, Dr. Eram has been awarded by one very prestigious and glamorous award, that is Inspiring Women Awards in 2021. So her CV is quite rich and quite comprehensive, quite bulky. I think it will be taking a lot of time if I'm going through all the minute details of her CV. So definitely her CV is available on the web page of the Institute of Advanced Studies in Education, Jamia Millia Islamia. If you want to know further, definitely you can go. Besides all these qualities, academic qualities, in fact, that I have just said, Eram ma'am is a very good human being. And despite of her busy schedule, whenever I approach to her and whenever I request, in fact, she finds time for my program. And I think in all my program, necessarily I invite her. So with this, Eram, 1 minute I'll be talking about my participants. I think I have sent you the list. So you can see it's very diverse group, ma'am. So there are very senior people, I mean, who are on the verge of retirement in a year or two, but simultaneously there are so many young people. Ma'am, most of them are trained, but they are very curious learners. They are very interactive. They are very participative. So I'm quite sure you will enjoy their presence. And on 27th of May, we organized a meeting of their principals. And through their principals, in fact, they made a request that necessarily include one session so that we may know how to do our professional development in this era.
and I thought ki you will be the most suitable resource person for this. So I think that's enough. It is 10:06, ma'am. And with this short introduction, I'm handing over the session to you. So it's over to you, Iram, ma'am. Thank you so much. Assalamu alaikum to all the participants. Thank you so much once again, Sajid Bhai, Assalamualaikum, for inviting me in this particular session and thinking of me when this particular topic of digitization and anything related to digitization comes in front of you. It's a pleasure, always a pleasure to interact with school teachers and to share the developmental processes which are happening throughout the country. I will be bilingual while speaking, क्योंकि मुझे पता है कि सब हर टीचर यहाँ जो भी bilingual will be better, bilingual वो उर्दू में वेल वर्स्ड हैं, तो इसलिए कोई ऐसा इशू नहीं है। ये जो टॉपिक है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का एंड स्पेशली इन द केस ऑफ डिजिटाइजेशन, वहाँ पे मेरे हिसाब से एज इज जस्ट नंबर्स। मैंने अभी कुछ दिन पहले 15 दिन पहले NIT वारंगल और IIITDM कुरनूल के साथ मिल करके, मतलब 3 और इंस्टीट्यूशंस का एक जॉइंट वेंचर था। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी MIT जो है, उन्होंने हमें फंड किया था। उसमें उसके थ्रू एक 10 दिन का प्रोग्राम करवाया था। दैट वाज फॉर AI इन द प्रेजेंट, AI के ऊपर वो था पूरा, AI इन द प्रेजेंट सिनेरियो। मैं आपको एक बात उसके रिगार्डिंग बताऊं। उसमें जो मेरे पार्टिसिपेंट्स थे, एक्चुअली उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन था, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स का रेस्ट्रिक्शन था, तो 90 के ऊपर हम लोग नहीं जा सकते थे। जो मेरे पार्टिसिपेंट्स थे उसमें मैक्सिमम ऐसे लोग थे जो 50+ थे, क्योंकि हमें ये एक बात बताई गई थी कि आप रिसर्च स्कॉलर्स को कम से कम रखें, फैकल्टी ज्यादा रखें। और जब वो प्रोग्राम चल रहा था और उसके बाद जब वो प्रोग्राम खत्म हुआ, 100% जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने एग्जाम दिया और पास किया और उनको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। और उस दौरान एक रिसर्च भी सामने आई कि जो टेक्नोलॉजी है और खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, उसमें जो इंटरेस्ट है लोगों का और जो यूसेज है, वो ऐसे लोग जो 1980 के पहले बॉर्न हुए उनका ज्यादा देखने मिला है। उनका वो एप्रीहेंसिव नहीं है, वो किसी भी तरह से रिलेक्टेंट नहीं है कि हम नहीं यूज करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये रिसर्च थी जो कि एक रिसोर्स पर्सन ने प्रेजेंट की, और मेरे लिए भी वो एक आई ओपनर था। क्योंकि हम लोगों को अक्सर ये लगता है कि अगर थोड़ी एज हो गई है तो शायद टेक्नोलॉजी से रिलेक्टेंस ही आ जाएगी, टेक्नोलॉजी की तरफ मायल नहीं होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और रिसर्चर्स ने इस चीज को साबित किया। तो एज इज जस्ट नंबर। हमें टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना है। और एक बात और, मैं हमेशा इस चीज को सामने रख करके ही शुरू करना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी का ये मतलब नहीं है कि हमें उसको जबरदस्ती यूज करना है। Technology should be used only when it is required, not for the sake of using technology. So with this point, I will start my session. And in the session, and one more thing, I would like to thank Sajid Bhai and also Faiza Madam और पूरी टीम जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। ये बहुत जरूरी प्रोग्राम होता है। जामिया में जब शुरुआत हुई थी इस तरह के प्रोग्राम्स की, इत्तेफाक से मैं आपको ये छोटी सी बात बताना जरूर चाहूंगी। 2019 में जब मैंने जामिया ज्वाइन किया था, क्योंकि NCERT से मैं आई थी, और उसी टाइम पे अक्टूबर में ज्वाइन किया था, और उसके जस्ट थोड़े दिन बाद ही 4-5 महीने बाद 2020 के शुरू में ही कोरोना का टाइम आ गया और फिर लॉकडाउन वगैरह होने लगा। तो उस टाइम पे जो हमारे यहाँ जामिया में 8 स्कूल्स हैं, वहाँ के जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग का जिम्मा जो उस वक्त की हमारी वाइस चांसलर मैडम थी प्रोफेसर नजमा अख्तर, उनका भी ताल्लुक अलीगढ़ से रहा है, उन्होंने मुझे दिया था। और 3 फेजेस में हम लोगों ने वो ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की थी, और वो भी नीड बेस्ड थी, क्योंकि टीचर्स ने कहा कि हमारी ट्रेनिंग नहीं है फॉर ऑनलाइन टीचिंग, फॉर डिजिटल वर्ल्ड वी आर नॉट ट्रेन टू। हम लोग रिक्रूट भी हुए हैं फॉर फेस टू फेस टीचिंग। एंड अगर हमसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम डिजिटल वर्ल्ड में अपने आप को सही साबित कर पाए, डिजिटल वर्ल्ड में हम आराम से घुल मिल जाएं, एक इक्विलिब्रियम बना लें, तो उस केस में वी रिक्वायर ट्रेनिंग। एंड दैट वाज द डे व्हेन मैडम सेड दैट यू हैव टू ऑर्गेनाइज अ ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग भी ऐसे होगी कि जो अर्ली वाले हैं, प्राइमरी टीचर्स और अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो डील करते हैं, उनकी ट्रेनिंग अलग होगी, सेकेंडरी वालों की और एलिमेंट्री जो
5th 6th 7th 8th 9th 10th तक के डील करते हैं, उनकी अलग और सीनियर सेकेंडरी की अलग। तो इस तरह से हम लोगों ने वो ट्रेनिंग करवाई थी। और इस वजह से जब भी मैं किसी स्कूल में जाती हूँ, जामिया के किसी भी स्कूल में, तो वो टीचर्स, कोई ऐसा टीचर नहीं जो मुझे नहीं पहचानता हो। और उसका सिर्फ एक वही वजह है कि वो ट्रेनिंग्स, क्योंकि उनको उससे फायदा होता है। जब डिजिटाइजेशन से आपको फायदा होगा तभी आप उसकी तरफ जाएंगे, अदरवाइज इसको बहुत आराम से भुलाया जा सकता है। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली दोज पॉइंट्स, दोज टॉपिक्स विच आर फीजिबल टू यूज। बहुत बड़ी बड़ी हाई फाई टेक्नोलॉजी बता करके सिर्फ एक माहौल बनाना जरूरी नहीं है, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको आप यूज करें। सो हम लोग आज कुछ जो क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात है, तो ऐसी चीजें जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है जस्ट फॉर द टीचर्स एंड ऑल्सो स्पेशली फॉर स्कूल टीचर्स। क्योंकि अभी हमारे जो ICT एट स्कूल स्कीम है गवर्नमेंट की, ICT एट स्कूल स्कीम बहुत पहले आ गई थी, NEP से भी बहुत पहले, जो कि मेक श्योर करती है कि अगर स्कूल एजुकेशन में आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो उसकी फंडिंग आपको अगर चाहिए, एक सरकारी स्कूल है और वो फंडिंग चाहता है किसी भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के लिए, तो उसका जो पैसा है वो ICT एट स्कूल स्कीम से आता है। उस स्कीम के आने के बाद 2012 में जब वो स्कीम आई थी और एक ICT पॉलिसी भी आई थी, उसके बाद से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको कि लॉन्च किया गया और जो कि चल रहे हैं और जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। सो इसलिए मैं उन प्रोग्राम्स को भी डिस्कस करूंगी और कुछ टूल्स जो कि आपको अगर पता है तो आपके लिए जो डेली लाइफ के काम है ना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के स्कूल के अंदर, वो बहुत आसान हो जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद, मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है लेकिन मैं ज्यादातर लाइव जाना पसंद करती हूँ, ऑल्दो प्रेजेंटेशन को एक बार मैं यहाँ शेयर कर देती हूँ। तो जो शुरुआत है वो एक स्क्रीन, मेरे ख्याल से स्क्रीन शेयर हो गया होगा। यस मैम, विजिबल। यस मैम विजिबल। यस मैम। ये एक स्क्रीनशॉट है, देखिए मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लगा लिए हैं इस प्रेजेंटेशन में, लेकिन मैं इन चीजों को अभी आपको लाइव जा करके दिखाऊंगी। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें जरूरी है, प्रेजेंट सिनेरियो में जानना जरूरी है। ये जो स्क्रीनशॉट है ये NCERT के वेबसाइट का है। अच्छा, मैं एक चीज और आपको बता दूं, हमारे देश में NCERT इज द एपेक्स बॉडी फॉर स्कूल एजुकेशन। 1961 में इसकी जब शुरुआत हुई थी तो उस टाइम पे एक जो पॉइंट था वो ये था कि जो भी कुछ हो रहा है in case of school education in the country, it should be unanimously percolated to every part of the country. It should not be centered or it should not be restricted only to the metropolitan cities और जो सेंटर के आसपास जगह है सिर्फ वहां तक ही महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको हर जगह आम फहम होना चाहिए। And for this there was a apex body required and that was created in the form of NCERT. And it has got the mandate of creating and developing things, developing like उसका जो आइकन है ना, ये जो इसका लोगो है, अगर आप देखें तो उसमें 3 swans हैं। These 3 swans are related to content development, research and development. ये जो रिसर्च करना, टीचिंग ट्रेनिंग के लिए रिसोर्सेज डेवलप करना और उसको डिसेमिनेट करना, ये 3 काम जो है इनका मैंडेट है और इस केस में इनको काम करते रहना है। अब अगर डिजिटाइजेशन की बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट है NCERT का जिसका नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जहां पे मैंने करीब 6 साल काम किया है एज असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं उस इदारे में जब गई 2013 में, तो वो टाइम था जब इंडिया में फर्स्ट रिपोजिटरी की शुरुआत हो रही थी। पहली रिपोजिटरी, इंडिया की फर्स्ट रिपोजिटरी जिसका नाम था नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, उसकी शुरुआत, नींव डाली गई थी, लॉन्च नहीं हुआ था। तो हम लोगों ने जब ज्वाइन किया, एक 15 लोगों की टीम थी जिनका एक साथ रिक्रूटमेंट हुआ था फरवरी के महीने में, 2013 फरवरी। पहला टास्क जो दिया गया था वो नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को डेवलप करने का, और जिसका मकसद ये था कि
हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, कहीं भी, कोई भी, मैं वर्ड यूज कर रही हूँ कोई भी, क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट्स या टीचर्स के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं थी रिपोजिटरी। उसका ये मकसद था कि एक ऐसा इंसान जो कि हो सकता है टीचर भी नहीं हो और स्टूडेंट भी नहीं हो, वो पेरेंट हो, बट उसके पास एक ऐसा कंटेंट है, एक रिसोर्स, एक फोटो ही है, मान लीजिए एक फोटो है जो कि बहुत ही उम्दा किस्म की है और वो एजुकेशनल स्टफ बन सकती है, तो वो पेरेंट भी अपने उस रिसोर्स को एक ऐसी जगह पे पब्लिश कर दे, उस ऐसी जगह पे दे दे जहां पे वो पब्लिश कर दी जाए, ताकि हर कोई उसको हासिल कर सके। उनके पास नहीं, उस पेरेंट के पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सबको जाकर के दे पाए, बट अगर वो किसी ऐसी जगह पे दे देता है जहां हर किसी का अप्रोच हो, तो फिर क्या होगा कि वो इजीली वो रिसोर्स सब तक पहुंचेगा। और इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए रिपोजिटरी को डेवलप किया गया, that whosoever in the country is having any type of resource which can be useful, which can be made useful by anybody for teaching and learning, that resource would be available there on the repository, and that too in the form of open educational resource. What exactly this open educational resources are? That type of resources which are OERs. For using them, we don't require any permission from the first person who has developed it. ना तो पैसे देने पड़ते, ना तो उनसे परमिशन लेनी पड़ती। आप आराम से जाइए, उस रिसोर्स को लीजिए, यूज कीजिए और जैसे मर्जी यूज करिए, किसी से कोई परमिशन नहीं लेनी है। तो रिपोजिटरी इस तरह से बनाई गई, वो पहला टास्क हम लोगों को दिया गया। तो जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, उसका मैंडेट ही ये है कि वो तमाम तरह के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स करता है। अब देखिए स्क्रीनशॉट में यहाँ पे कई सारी चीजें हैं, मैं एक एक करके इनको शो करना चाहती हूँ। फॉर दैट पर्पज आई विल गो टू द लाइव साइट, ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके लिए वी जस्ट नीड टू गो टू ऑन गूगल, वी नीड टू टाइप एनसीईआरटी बस, और बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इस पे चले जाएंगे और यहाँ पे भाषा सेलेक्ट करने के बाद यू जस्ट हैव टू मूव अ लिटिल बिलो। जब यहाँ पे आप एक तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे शुरू में ही उन्होंने क्या किया, डिस्प्ले मोड में लगा दिया है। तो वो जो डिस्प्ले मोड में चीजें, उनके ऊपर आप क्लिक करें, अगर क्लिक करते रहेंगे तो इधर से आप डिस्प्ले मोड पे चीजों को देख सकते हैं। बट मुझे आपको बताना है कि वो क्या करने के लिए है। जब सबसे पहला है इसमें दीक्षा पोर्टल। अब मैंने नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की बात की थी। 2013 के अगस्त में ही वो रिपोजिटरी लॉन्च हो गई थी और 2017 तक रिपोजिटरी ऑनलाइन रही। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जब गवर्नमेंट चेंज होती है ना, तो ऐसा होता है कि पुराने चल रहे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कई बार अलग नाम से हम जानने लगते हैं, अलग नाम उनका हो जाता है, या फिर कई बार ये भी होता है कि उन पुराने प्रोजेक्ट्स को किसी नए प्रोजेक्ट्स के साथ मर्ज कर दिया जाता है। और यही एनआरओईआर के साथ हुआ। एनआरओईआर का मर्जर हुआ इन द दीक्षा प्लेटफॉर्म, दिस वन। मैं इस यहाँ पे कैसे पहुंची हूँ, इसके लिए मैंने सिर्फ इतना किया है, एनसीईआरटी वेबसाइट के ऊपर जब जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आने के बाद ये यहाँ पे आईसीटी इनिशिएटिव्स करके एक सेक्शन है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का जो बॉक्स गोले गोले हैं ये बन के आ जाएंगे। हर सर्कल के अंदर एक प्रोजेक्ट को हाइपरलिंक करा गया है। इसमें यहाँ जो सेकेंड नंबर पे दीक्षा है, दीक्षा जो प्रोजेक्ट है, मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फौरन आप दीक्षा का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर चले जाएंगे। ये है क्या? फुल फॉर्म इसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है, बट ये करता क्या है या ये प्रोजेक्ट है क्या? Diksha is a place which is developed by the council under the patronage of obviously the Ministry of Education, a platform or a place where anything or everything can be pooled, developed by a teacher. ये important बात है, developed by a teacher. टीचर ने कोई भी अगर कंटेंट डेवलप किया है, उस कंटेंट को वो टीचर दीक्षा प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करने के लिए दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? थ्रू दी देयर अथॉरिटीज। सो लाइक इफ सपोज दिल्ली के जो कोई स्कूल में टीचर है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर कोई स्कूल आता है और उसमें जो टीचर्स हैं, अगर उन्होंने कोई रिसोर्स डेवलप किया सपोज, तो वो क्या करेंगे, अब उन सारे, और रिसोर्स का मतलब क्या है, वीडियो या ऑडियो या कोई पिक्चर या कोई डॉक्यूमेंट या XYZ कोई गेम हो, किसी भी तरह का कंटेंट जो कि यूजफुल हो और वो डिजिटल होना चाहिए।
डिजिटल होना चाहिए और वो टीचर्स को लगता है कि यूजफुल है फॉर टीचिंग एनी टॉपिक ऑफ एनी सब्जेक्ट फॉर एनी ऑफ द क्लासेस फॉर स्कूल लेवल, ऐसा कोई, या फिर टीचर एजुकेशन का, यस टीचर एजुकेशन भी इनकी एम्बिट में आता है, बिकॉज एनसीईआरटी डील करती है विद स्कूल एजुकेशन एंड ऑल्सो टीचर एजुकेशन, क्योंकि टीचर एजुकेशन जो है वो स्कूल के लिए रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने का काम टीचर एजुकेशन का है। सो इसलिए टीचर एजुकेशन को भी अपनी एम्बिट में एनसीईआरटी ने लिया है। सो whatever resources a teacher develops, that resource, what exactly is to be done, उस रिसोर्स को पहले करेक्शन किया जाए, उसको चेक किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा कि वो रिसोर्स ठीक है कि नहीं, कहीं कोई उसमें एम्बिग्यूटी तो नहीं है या कोई डेरोगेटरी कंटेंट तो नहीं है उसके अंदर। कंटेंट वाइज, कॉन्टेक्स्ट वाइज, हर तरह से जब वो कंटेंट सही पाया जाएगा, उसके बाद स्कूल की अथॉरिटी जो उनकी सुपर अथॉरिटी होगी, अगर वो सीबीएसई के अंदर है या जिसके भी, या डीओई के अंदर है, या जिस अथॉरिटी के अंदर वो गवर्न होते हैं, उनके पास वो कंटेंट को पूल करेंगे। एक बार जब सारा कंटेंट पूल हो जाएगा, और एससीईआरटीज को भी इसका हब बनाया गया है, तो अगर डीओई का है या और दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो एससीईआरटीज के थ्रू गवर्न होते हैं, जैसे कि स्टेट बोर्ड्स जो हैं, तो वो क्या करेंगे, सारे कंटेंट को एससीईआरटी के पास पूल करेंगे, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एससीईआरटी इज गोइंग टू हैव अ गुड लुक, मींस उसका एक अच्छा इवैल्यूएशन करने के बाद उस कंटेंट को दीक्षा को देंगे, और दीक्षा का जो हब है वो अभी भी एनसीईआरटी में ही है। अगर आप कभी एनसीईआरटी जाएं, वहां पे आपको सीआईईटी जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, उसकी बिल्डिंग है कैंपस के अंदर ही, वहां आप अगर जाते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे ही दीक्षा का पूरा एक सेटअप है, दीक्षा प्लेटफॉर्म का सेटअप है। मिनिस्ट्री ने उसको एनसीईआरटी के अंदर ही रखा है, और वहां पे एक लंबी चौड़ी टीम है जो दीक्षा के लिए काम कर रही है। इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप यहाँ देखें, वो जो कंटेंट जो टीचर्स ने डेवलप किया और फिर एससीईआरटीज को या अपनी अथॉरिटीज को दिया, उस कंटेंट को यहाँ पे डाल दिया जाता है आफ्टर द ई कंटेंट इवैल्यूएशन। एंड इफ यू वांट टू सी दोज कंटेंट, यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर आना पड़ता है। एक नया डेवलपमेंट जो दीक्षा के साथ हुआ है, जो मुझे अभी 2-3 दिन पहले ही पता चला, कि अब यहाँ पे हमें कोर्सेज भी मिलेंगे। जैसे हमें स्वयं पे कोर्सेज मिलते हैं ना, सेम वैसे ही हमें कोर्सेज दीक्षा प्लेटफॉर्म पे भी मिलेंगे, जो कि टीचर्स के लिए होंगे। वो आराम से आकर के इस प्लेटफॉर्म से उन कोर्सेज को कर पाएंगे। तो ये जो और दीक्षा प्लेटफॉर्म का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो कि फंक्शनल है। अगर आपको उसको देखना है तो यहाँ इधर ये दीक्षा प्लेटफॉर्म का मोबाइल ऐप, उसमें इस तरह का आइकन है जो कि आप प्ले स्टोर पे जाकर के अपने फोन में भी डाल सकते हैं। इससे जो टीचर ट्रेनिंग है वो भी पॉसिबल होगी, और कंटेंट, टीचर्स के लिए जो कंटेंट का की फराहमगी है वो बहुत इजी हो जाएगी। जब इसमें डेवलपमेंट की स्टेज थी तो क्योंकि मैं इसका हिस्सा हूँ और इसके लिए बहुत सारा कंटेंट डेवलप भी मैंने किया है, और क्यूरेशन की प्रोसेस, क्यूरेशन का मतलब होता है कि किसी का बनाया हुआ जो कंटेंट है उसको चेक करना और ये पता लगाना कि ये पर्टिकुलर कंटेंट किस टॉपिक को पढ़ाने के लिए यूजफुल होगा और किस हद तक, किस क्लास तक, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग ही तो हम डिसाइड करते हैं ना कि वो कौन सी क्लास में पढ़ाया जाए। तो जो टीचर्स का सेक्शन है, अगर आप वहां जाएंगे तो मेरा क्यूरेटेड मटेरियल भी वहां पे बहुत सारा मिलेगा। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको जो कंटेंट है उसके लिए, और अगर आपको रिसोर्सेज को देखना है, ये यहाँ पे ये 5 तरह के रिसोर्सेज हैं: ऑडियो, वीडियो, इमेज, डॉक्यूमेंट एंड इंटरैक्टिव। और एक बीच में एक बात ये भी हुई थी कि इसको मैंडेट बनाया था कि सभी टीचर्स को दीक्षा के लिए कंटेंट डेवलप करना है, उनके लिए कंपलसरी बनाया गया था। मुझे नहीं पता कि एएमयू के टीचर्स के लिए ये कंपल्शन था या नहीं, बट दिल्ली के हर टीचर को, हर स्कूल के पास ये, जी कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ, तो ये टीचर्स के लिए कोई ये, जी जी मैडम बोलिए। Assalamu alaikum, ma'am. अस्सलाम। My name is Hina and I am from ABK Girls Senior Section. Actually, I have created my YouTube channel in order to help out the students, give them extra remedial classes. जी But on YouTube, there is no much access.
people are not students are not accessing it much. So I wanted to upload my videos. I have tried a lot on Diksha, so but I'm not getting how to upload, like right now you have guided. जी मैं So बताती हूँ क्या इसका प्रोसेस क्या है। अगर आपको दीक्षा Thank you, प्लेटफॉर्म ma'am. पे अपना कंटेंट प्रोवाइड करना है, क्योंकि पहले जो था ना NROER पे, तो अगर आपने अभी कहा होता, अगर NROER रहा होता और आपने अभी ये बात मुझे बोली होती, तो मैं फौरन उसका सॉल्यूशन आपको दे पाती। दीक्षा के लिए सॉल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है। दीक्षा पे अगर कंटेंट को देना है, दीक्षा के लिए जो कंटेंट है वो आपकी अथॉरिटी के थ्रू जाएगा। तो टीचर ने अगर कोई कंटेंट को डेवलप किया है और भी टीचर्स ने डेवलप किया है, या मान लीजिए आपके पास काफी सारा कंटेंट हो गया, तो आपका की जो स्कूल अथॉरिटी यानी जो आपके प्रिंसिपल हैं, और इन केस ऑफ AMU बिकॉज द स्कूल्स कम अंडर द एजेस ऑफ AMU, तो वो AMU के थ्रू, मतलब जो आपकी हाईएस्ट अथॉरिटी है, उनके थ्रू दीक्षा पे दिए जाएंगे। दीक्षा पे बीच में एक, यहाँ पे अगर आप देखो शुरू में एक सेक्शन है जिसका नाम है विद्यादान। यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा उसके। दीक्षा पे विद्यादान का एक सेक्शन है जिसके आप उस पे एक्सप्लोर करना आपको दिखेगा। वहां पे आप जा करके ये बता सकते हैं दैट यू हैव गॉट दीज मेनी कंटेंट। और अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो उस केस में आप मुझे अलग से कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको जो वहां पे अथॉरिटी बैठी हुई है, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द अपलोडिंग ऑफ द कंटेंट, उनसे आपका कांटेक्ट करा दूंगी। आप फिर अपना सारा कंटेंट उनको दे सकते हैं। ये याद रखिएगा कि आपका जो कंटेंट है उससे आपको मोनेटाइजेशन नहीं आप कर सकते, वो फ्री में देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस फ्री में लेते हैं और फ्री में ही देते हैं, ये याद रखिएगा। You cannot expect money from them because the philosophy behind all these projects is that whatever content the teachers are developing, it should be freely available to all the children of India. उससे आप पैसे नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते। तो वो आप मुझसे बात करिएगा। और अगर आपको डायरेक्ट देखना है तो आप यहाँ नीचे जो इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, डायरेक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे प्रोफेसर इंदु कुमार हैं, जो कि दीक्षा को हेड करती हैं CIT के अंदर। उनके थ्रू आप पूरी जो प्रोसेस है उसको समझ करके यहाँ पे AMU का एक सेक्शन भी बनवा सकते हैं। दीक्षा के ऊपर हर एक इंस्टीट्यूशन का, जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं जो कंटेंट को डेवलप करके देते हैं, उनका एक हेड बन जाता है। तो जैसे यहाँ CBSE का एक हेड है, या UP बोर्ड या पंजाब या इस तरह के जो प्लेसेस हैं जहाँ जिनका मेजर कंटेंट आता है, उनका उन्होंने एक आइकन, उनका एक हेड बना दिया है। उनका जो भी कंटेंट है, उनके लोगों से डेवलप जो भी कंटेंट है, वो जब उस पे क्लिक करते हैं तो ओपन होने लग जाता है। और वो फिर बाद में क्यूरेट करके उसको, अगर मान लीजिए 12th क्लास का कंटेंट आपने दिया है, तो उस 12th क्लास के कंटेंट को टीचर्स किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में टीचर आपके कंटेंट को यूज कर पाता है। So this one is a wonderful initiative which houses the content for every level of school education. इसको explore जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस पे content देंगे तो और भी अच्छा होगा। Representation is something जो कि आज के दौर में ना की है। Representation का मतलब ये है कि अगर हम अपने आप को, जो हमारा कंटेंट है, टीचर की का एसेट क्या है, उसका कंटेंट जो वो पढ़ाता है बच्चों को और जो वो कंटेंट डेवलप करता है, how we are going to showcase the content and try to get the content used by others. बना के खुद के पास रख लिया, जैसे अपने स्टूडेंट्स को दिया, कोई फायदा नहीं है बहुत खास, बहुत थोड़े से लोग उससे फायदा उठाएंगे। हम जो कुछ डेवलप करें उससे मैक्सिमम लोग फायदा उठाएं, तब तो फायदा है ना। तो ये फिलॉसफी जो OER की फिलॉसफी है कि ओपनली कंटेंट को दे देना और ऐसे प्लेटफॉर्म्स को देना जिनकी पहुंच दूर दूर तक हो, हर कोई उस तक पहुंच सके। सो एक तो ये। दूसरी चीज जो नेक्स्ट इसमें मैं बात करना चाहूंगी, मैं यहाँ से ही आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। ये जो एक प्लेटफॉर्म है स्वयं प्रभा एक कंसोर्शियम है एजुकेशनल चैनल्स का, जिसमें कि अभी 40 चैनल्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्लेटफॉर्म है, और इसको बनाया इसलिए गया था क्योंकि देखा गया कि हमारे देश में बहुत तरह की ऑडियंसेस हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म पे चली भी जाती हूँ, अगर किसी भी जगह पे आप ना क्लिक करेंगे तो आप सीधे उस प्लेटफॉर्म के होम पेज पे पहुंचेंगे। ये एक अच्छी चीज है जो यहाँ पे की गई है। किसी भी
कंटेंट को जो स्वयं प्रभा डेवलप करता है, उस कंटेंट को आप एक तो यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, दूसरी चीज ये टीवी पे टेलीकास्ट होता है। टीवी पे स्वयं प्रभा के 40 चैनल्स हैं और उन 40 चैनल्स को मेरे ख्याल से शायद एमयू के पास भी चैनल हो, जामिया के पास 2 चैनल्स हैं। जो ये 40 चैनल्स हैं उसमें से कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को दिया गया हायर एजुकेशन के लिए, और 12 चैनल्स को पीएम ई विद्या के नाम से स्कूल एजुकेशन को डिवोट किया गया है। वो 12 चैनल्स जो है वो एनसीईआरटी के पास है। स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चैनल्स एनआईओएस के पास भी हैं, लेकिन जो 12 चैनल्स जो एनसीईआरटी के पास है पीएम ई विद्या कहलाते हैं। और वाई 12 बिकॉज देयर आर 12 क्लासेस 1 to 12। तो फर्स्ट जो चैनल है वो पहली क्लास का कंटेंट देता है, ऐसे ही सेकंड जो चैनल है वो दूसरी क्लास का, एंड लाइकवाइज टिल 12th स्टैंडर्ड। और होता क्या है, अगर ये इस प्लेटफॉर्म पे आप आएंगे ना, तो यहाँ पे सारे के सारे जो चैनल एलोकेशंस हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोग्राम का शेड्यूल है वो भी आ जाता है, बस इस पे क्लिक करना है, एक एक करके आपको क्लिक करते चलना है। अब जैसे ये जो है चैनल एलोकेशन में स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, मुझे इसको इधर हटाना पड़ेगा, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि अभी रिसेंटली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इवन दीक्षा पे भी PAL पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग करके एक सेक्शन बनाया गया है, क्योंकि मैं उसका हिस्सा थी इसलिए मैं आपको अच्छी तरह बता सकती हूँ। उसमें ना हम लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे आइटम्स डेवलप किए, आइटम्स मतलब क्वेश्चंस डेवलप किए विद आंसर्स, वो एप्लीकेशन बेस्ड भी थे, मतलब पूरी ब्लूप्रिंट के साथ क्वेश्चंस डेवलप किए ताकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें बच्चों की हेल्प हो सके। सो उन्होंने उधर दीक्षा पे भी रखा है और प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक सेक्शन इधर भी है जो कि प्रिपरेशन करवाते हैं बच्चों को फॉर देयर एग्जाम्स। सो बहुत सारा काम हो रहा है देश में, बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को मालूम नहीं होता। तो ये जो सेक्शन है ना फॉर स्कूल एजुकेशन ऑन स्वयं प्रभा, अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे उन सारे चैनल्स की लिस्ट के पास ये मैं इधर ऐसे, या ये जो स्कूल एजुकेशन के सारे जो चैनल है, ये पीएम ई विद्या 1, 2 ऐसे करके ये पूरा 12 तक होगा। उसके बाद फिर ये 12 हो गया ई विद्या वाले, उसके बाद फिर एनसीईआरटी, पीएम ई विद्या 13 and 14, और ये जो नए चैनल्स है ना 12 के बाद 13, 14 और 15, ये पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव कंटेंट के लिए है। और उसके बाद फिर ये केवीज को दिए गए हैं कुछ चैनल्स, और क्योंकि इसका एक्सटेंशन हुआ है हायर एजुकेशन के चैनल्स को अलग कर दिया गया है और जो स्कूल एजुकेशन के चैनल्स हैं उनको अलग कर दिया गया है। शुरुआत में 34 चैनल्स होते थे टोटल हायर और स्कूल सब मिला के, बट अब उसको एक्सटेंड किया गया है और ये बहुत सारे चैनल्स और भी डेवलप किए गए हैं। इसका पूरे का जो हब है वो बाइसैक गुजरात में है और बाकी सब इंस्टीट्यूशंस को दिया गया है ताकि इंस्टीट्यूशंस अपने चैनल के ऊपर कंटेंट को टेलीकास्ट करवा सकें। अब इसके पीछे देखिए ये इतने जो चैनल्स हैं ये सब इंस्टीट्यूशंस को दिए गए हैं और स्टेट्स को दिए गए, SCRTs को स्टेट्स को दिए गए हैं, और ताकि वो लोग अपना डेवलप, क्योंकि हर एक SCRT को मैंडेट दिया गया है कि वो अपने कंटेंट डेवलप करें। ये सब के सब कुछ फंक्शनल होंगे, कुछ हो सकता है अभी नहीं चल रहे हों। ये सारे के सारे जो, क्योंकि मुझे पता है कुछ SCRTs बहुत अच्छा काम करें, जैसे SCRT राजस्थान है, क्योंकि मैं उनके स्टेट ग्रुप का हिस्सा हूँ। जो ट्रेनिंग देनी थी उन लोगों को, जब ट्रेनिंग दी जा रही थी SCRT राजस्थान के लोगों को, तो उस टाइम पे आई वाज द पार्ट ऑफ द टीम ऑफ ट्रेनर्स। सो वो एक ग्रुप था, तब ट्रेनर्स का ग्रुप बना था, उसमें सारे पार्टिसिपेंट्स भी थे, तो उस ग्रुप में मैं थी। ये बहुत साल पहले की बात है, मुझे याद आता है शायद ये 2016 या 17 के अराउंड की बात है। तब ये तस्वुर भी नहीं था स्वयं प्रभा का। हम लोगों ने ट्रेनिंग दी थी किस लिए, फॉर ई कंटेंट डेवलपमेंट, और ग्रुप बन गया था। उसके बाद फिर स्वयं प्रभा तो काफी बाद में आया, तो वो सारे टीचर्स अभी कंटेंट डेवलप करते हैं, वो सब कुछ स्वयं प्रभा पे टेलीकास्ट होता है। और क्योंकि ग्रुप में हूँ तो इसलिए मुझे पता चलता रहता है, वो शेड्यूल वगैरह भी डालते रहते हैं। हर स्टेट को मल्टीपल चैनल्स दे करके उनको ये बोला गया है कि आप कंटेंट डेवलप कीजिए और उसको टेलीकास्ट कीजिए। टेलीकास्ट से फायदा क्या होता है, देखिए बहुत बड़ा फायदा है। टेलीकास्ट के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। जो चैनल्स हैं टीवी के चैनल, वो केबल कनेक्शन से आते हैं
और स्कूलों में, ज्यादातर स्कूलों में कैल लैब है, कंप्यूटर लैब जैसे भी कहते हैं, बहुत सारे लोग उसको कैल लैब के नाम से जानते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड लेबोरेटरी या फिर कंप्यूटर लैब के नाम से तो जाना ही जाता है। उसमें टीवी दिया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से टीवी प्रोवाइडेड है हर एक सरकारी स्कूल में विद केबल कनेक्टिविटी। तो ऐसे बच्चे जिनके पास इंटरनेट की सर्विस नहीं है घर पे, उन बच्चों को भी आप कंटेंट जो टीवी पे टेलीकास्ट हो रहा है उसके जरिए अगर चाहें तो असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे ये किया जाएगा? पॉसिबल कैसे? पॉसिबल ऐसे होता है कि जो सिलेबस ट्रांजैक्ट हो रहा होता है ना, वो अगर आप देखें तो जितने भी स्कूल्स हैं, जैसे दिल्ली के स्कूलों में अगर आप आते हैं, बायोलॉजी में जो टॉपिक पहले स्कूल में पढ़ाया जा रहा होगा वही दूसरे स्कूल में भी, सो वो बड़े प्रॉपरली टैग्ड होता है कि हर एक कंटेंट सेम होगा, हर स्कूल में कंटेंट वही सेम पढ़ाया जा रहा होगा। इस वजह से ये प्रोसेस ऑफ टेलीकास्ट which is very much in sync with the syllabus which is being transacted, ये possible हो पाता है। तो ये जो synced content है ये हम कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? with the help of these स्वयंप्रभा channels। मैं एक और डॉक्यूमेंट है जिसको आप लोगों को दिखा दूंगी अभी, क्योंकि मेरे पास वक्त इतना नहीं है कि मैं वो पूरा डिस्कस कर सकूं, सिर्फ इसलिए बताऊंगी क्योंकि वो एक ऐसा दस्तावेज है जिसको डिजिटल वर्ल्ड में अगर कोई भी इंसान है तो जानना चाहिए, और सरकार ने डेवलप किया है। उसका नाम है प्रज्ञता डॉक्यूमेंट। उस प्रज्ञता डॉक्यूमेंट के अंदर शुरू के पेजेस में ही, अगर मैं इसको सिर्फ ऐसे लेके जाऊं, आपको लिखना है आपको प्रज्ञता, शायद आप में से कुछ लोग जानते हो इसको। प्रज्ञता मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो साइट है उस पर मिल जाएगा, ये एनसीईआरटी की साइट पे भी मिल जाएगा। ये एक गाइडलाइन है कि यहाँ मैं ऐसे दिखाती हूँ, प्रज्ञता गाइडलाइंस फॉर डिजिटल एजुकेशन, इसका भी मैं हिस्सा हूँ। इसको डेवलप करने के लिए जब शुरुआत हुई थी इसकी 2020-21 में इसको लॉन्च किया गया था। हम लोगों ने इसको जब बनाया था तो ये बोला गया था, ये क्यों बनाया गया था? ये इसलिए बनाया गया था कि अगर कोई इंसान इंडिया के किसी भी कोने में है और उसको डिजिटाइजेशन से फायदा उठाना है, वो क्या कर सकता है और कैसे कर सकता है। अगर उसको कोई एक मैनुअल चाहिए, जिस मैनुअल होता है ना, किसी कोई मशीन आती है उसके साथ एक मैनुअल होता है जिसमें लिखा होता है किसे कैसे यूज करना है। तो अगर हम किसी को कह रहे हैं कि आपको डिजिटाइजेशन को अडैप्ट करना है, हाउ, अगर वो पूछता है कैसे, तो उसके साथ ये मैनुअल है, ये दे दो कि ये है, दिस इज द वे which you can, like this is the document which you can read, and after reading this you will get to know that what exactly is the way in which you can deal with if you want to become a digital savvy or digitized person। इस केस में ये डॉक्यूमेंट बहुत हेल्पफुल है। और इसमें, इसको मैं थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे इस पेज पे आऊंगी। देखिए इस पेज में एक बात है जिसके पीछे जो कि बेसिक रीजन है, ये सब स्वयंप्रभा, दीक्षा, स्वयं, ई पाठशाला और आईसीटी करिकुलम, बहुत सारे जितने भी आईसीटी इनिशिएटिव्स हैं, उन सब के पीछे जो एक्चुअल वजह है वो ये है। क्या है? गवर्नमेंट का मैंडेट होता है कि वो हर इंसान जो देश में रहता है उसके लिए काम करेगी। वो सिर्फ हैव्स के लिए काम नहीं करेगी, नॉट हैव्स के लिए भी काम करेगी। नाउ द पॉइंट इज दैट हु आर दोज नॉट हैव्स इन टर्म्स ऑफ डिजिटल वर्ल्ड? सो द नॉट हैव्स आर दोज हु डोंट हैव एनी डिजिटल डिवाइस। कोई डिजिटल डिवाइस है ही नहीं उनके पास। अब उनको भी हम छोड़ नहीं सकते, सरकार नहीं छोड़ सकती, उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। उनके लिए जो काम करना पड़ेगा वो इस तरह का हो जिसमें कि अगर उनके पास डिवाइस ना भी हो तो भी काम चल जाए। इसके लिए जो इनिशिएटिव है वो बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं जो बनाए जाते हैं और स्कूलों में बांटे जाते हैं, लेकिन वहां पे ये जो टीवी चैनल्स हैं ये काम आ जाते हैं। बच्चे के पास कोई डिवाइस नहीं है, हम उसे कह नहीं सकते कि तुम फलां चीज देख के आना। जब वो स्कूल आएगा, अगर वो बच्चा स्कूल आ रहा है तो स्कूल में जो डीटीएच केबल कनेक्शन के साथ टीवी है उसके थ्रू हम बच्चे को ई कंटेंट प्रोवाइड कर पाते हैं। एंड फॉर दैट पर्पस द स्वयंप्रभा वाज इनिशिएटेड। सो टेलीविजन सेट विद केबल कनेक्शन इन स्कूल, ठीक है, उस बच्चे के लिए जो नो डिजिटल डिवाइस वाला है। स्कूल में जो ये टीवी सेट है उस पे स्वयंप्रभा के चैनल हैं
जिसपे कि पक्का पता है मुझे कि आज मुझे पढ़ाना है फोटोसिंथेसिस 5वीं क्लास को, 5वीं क्लास का जो चैनल है उस पे आज की डेट में फोटोसिंथेसिस का ही कंटेंट टेलीकास्ट किया जाएगा. That is not a variable thing. It is going to be constant. Why? Because the syllabus across the country is like when it was mentioned that there on in all the centrally governed schools NCERT का ही जो books हैं और curriculum है वो चलेगा. तो इसके थ्रू ये मेक श्योर किया गया कि एक दिन में वही कंटेंट सब जगह पढ़ाया जा रहा हो, जिससे कि अगर टेलीकास्ट में हम उसी से रिलेटेड कोई कंटेंट, कोई एनिमेशन या कोई ऐसा वीडियो जो कि एक्सप्लेनेटरी वीडियो हो फॉर द टॉपिक ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर एग्जांपल, तो कितना आसान हो जाएगा ना. टीचर ने उस कंटेंट को शोकेस किया और उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दिया. सो इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे एंड child friendly way we will be in a position to provide scaffold. इसके लिए स्वयं प्रभा जैसे चैनल, टीवी चैनल्स को इतना फंड दे करके गवर्नमेंट ने रेज किया है. दूसरा कैटेगरी इसमें जो बनाया गया है वो है जिनके पास बेसिक मोबाइल फोन होता है. कुछ जो बच्चे जिनके घर बेसिक मोबाइल फोन है जिसमें रेडियो या फिर उनके पास एफएम का रेडियो सेट है और उसमें एफएम चलता है. फॉर दैट पर्पस देयर आर सर्टेन रेडियो चैनल्स, जैसे एफएम ज्ञान वाहिनी का नाम अगर सुना हो आपने, ज्ञान वाहिनी, ज्ञान वाणी, ये वो रेडियो चैनल्स हैं जिनके ट्रांसपॉन्डर्स एनसीईआरटी और ऐसे इंस्टीट्यूशंस में हैं जहां से रेडियो कंटेंट, बेसिकली पॉडकास्ट आजकल जो बेसिक मतलब है पॉडकास्ट का वो रेडियो कंटेंट, ऑडियो कंटेंट से है. लेकिन आजकल पॉडकास्ट को लोग क्योंकि यूट्यूब पे डालना होता है और यूट्यूब तो वीडियो फेचिंग साइट है, तो वो जो पॉडकास्ट है उसमें भी हमें कुछ वीडियो कंटेंट दिखाना पड़ता है, जबकि जो बेसिक आइडियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग पॉडकास्ट इज जस्ट एन ऑडियो कंटेंट. उसकी डेफिनेशन अगर आप देखेंगे मेरियम वेबस्टर में या किसी भी डिक्शनरी में, तो पॉडकास्ट इज जस्ट द ऑडियो कंटेंट. सो जो पॉडकास्ट है वो या फिर रेडियो का जो कंटेंट है, ऑडियो कंटेंट है, ऑडियो बुक्स है, उनको हम इन रेडियो सेट्स पे के थ्रू या वो बेसिक मोबाइल फोन में जहाँ जिसमें एफएम होता है उसके जरिए जो एजुकेशनल कंटेंट है, डिजिटल एजुकेशनल कंटेंट है, वो बच्चों तक पहुंचाएंगे. अगला कैटेगरी है टेलीविजन सेट विद डीटीएच केबल कनेक्शन. अगर घर में है बच्चे के तो वो फिर अगेन स्वयं प्रभा आ जाता है. द नेक्स्ट कैटेगरी इज स्मार्टफोन विद लिमिटेड 3G 2G और नो एक्सेस टू इंटरनेट. बहुत कम या नहीं है एक्सेस. उस केस में स्मार्टफोन में एक फीचर होता है डाउनलोड का. अगर बच्चे के पास ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें इंटरनेट बहुत कम है या जिसमें जो डेटा है वो उसकी कम कैपेसिटी है, या ऐसा है कि कुछ कभी कभी आ जाता है इंटरनेट पे चला जाता है, इस तरह का अगर इशू है या स्पीड कम है, तो उस केस में उसको मान लीजिए जिस भी कंटेंट की रिक्वायरमेंट है वो इस फॉर्म में प्रोवाइड किया जाए कि अगर बच्चा डाउनलोड करता है तो वो इतना लाइट हो कंटेंट. देखिए कंटेंट हैवी होता है और लाइट होता है, ये आप लोग सब जानते होंगे. इतना लाइट कंटेंट हो कि बच्चे के फोन में वो आराम से डाउनलोड हो जाए. ऐसा ना हो कि वो इतना हैवी हो कि वो कंटेंट डाउनलोड ही ना हो सके. इसके लिए जो एफर्ट किए गए उसका जो प्रोडक्ट है वो आप ई पाठशाला पे देख सकते हैं. ई पाठशाला पे आपको जो किताबें हैं वो सब की सब छोटे छोटे पैकेट्स में मिलेंगी. कैसे किया गया, हर एक चैप्टर को एक फाइल बना दी गई. हर चैप्टर, नई बुक्स जो आ रही हैं, अगर आपको नई पुरानी बुक्स भी वैसे ही उस फॉर्म में अवेलेबल कर दी गई थी. वरना पहले क्या होता था, पुराने जमाने में था नेट पे कंटेंट होता था लेकिन बुक पूरी आपको डाउनलोड करनी पड़ती थी. आप एक बार में पूरी बुक डाउनलोड कर सकते थे, अलग अलग चैप्टर के फॉर्म में नहीं था. जब ये वाले सेक्शन को केटर करने की बात हुई तो उस टाइम पे ये डिसाइड किया गया कि पूरी बुक अगर हम बच्चा डाउनलोड करता है एक बार में पूरी बुक तो पढ़ेगा नहीं, उसका पूरा फोन का जो का स्पेस है वो ऑक्युपाई हो जाता है. और बुक क्योंकि फाइल हैवी हो जाती है तो वो डाउनलोड होने में इतना डेटा खा जाएगी कि बच्चा दूसरी चीज कर ही नहीं पाएगा. तो इसके लिए उसको छोटे छोटे हिस्सों में कर दिया. एक चैप्टर 1, चैप्टर 2, उसको जो चैप्टर चाहिए वो डाउनलोड कर ले, और जब उसको दूसरा चैप्टर चाहिए उसको वहां से डिलीट कर ले, दूसरा चैप्टर वहां पे डाउनलोड कर ले. इसके लिए ई पाठशाला एंड
the website and also the mobile app was developed. उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट है ये स्मार्टफोन विद 4G नेटवर्क। स्मार्टफोन विद 4G नेटवर्क किसी के पास है तो वो तमाम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकता है, उसके लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जिसके लिए कि 5G कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है, तो कुछ हो सकता है कि थोड़ा बहुत इस बच्चे को ना मिले। वैसे स्मार्टफोन विद 4G नेटवर्क अगर है तो वो तकरीबन सब चीजें कर सकता है। कुछ थोड़ी सी चीजें जो सिमुलेशन में होती है ना, सिमुलेशन और गेमिंग के जरिए, क्योंकि इंटरैक्टिव कंटेंट भी डेवलप किया गया है, वो कई बार जो वो थोड़ी स्लो हो जाती हैं, तो इसलिए ये कोशिश की गई कि जो सिमुलेटेड कंटेंट है वो भी हल्का बनाया जाए, वो भी इस तरह का बनाया जाए कि बच्चे हासिल कर सकें, जिनको जो स्टेक होल्डर है उनको वो मिल सके। तो ये कोशिश करने के बाद एक इनिशिएटिव है जिसका नाम मैं लेना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि उसको मिनिस्ट्री ने फंडिंग ही इसीलिए दी, उसका नाम है ओ लैब्स। ये ओ लैब्स है। अगर यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनमें कोई भी ऐसा टीचर जो कि सिमुलेटेड कंटेंट के बारे में जानना चाहता है या उसको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी लेवल के लिए कुछ भी प्रैक्टिकल कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, इवन इस पर्टिकुलर वेब पेज पे आप जब आएंगे ना तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज का, सोशल साइंस का मटेरियल मिलेगा। आप ये देख सकते हैं। जी, कोई कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, सो ये यहाँ पे ये, और ये फ्री है। प्लीज एक बात याद रखिएगा, मैं कुछ भी जो भी बताऊंगी एक डिस्क्लेमर है जो तुम्हें मैं भी ऐसे कंटेंट कोई भी कर लीजिए, एक मिनट माइक ऑफ कर लीजिए। हेलो इरशाद साहब, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। तो ये जो ओ लैब्स है ये फंडेड बाय माइटी है, और फंडिंग तभी मिली इसको जब इन्होंने अपने सारे कंटेंट को फ्री एंड ओपन सोर्स बना दिया। तो यहाँ पे जब आप आते हैं ना, इस पर्टिकुलर प्लेस पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, लैंग्वेज, साइंस क्योंकि 10th तक तो साइंस कहलाती है ना, सोशल साइंस, कंप्यूटर्स, और ये इन्होंने भी ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का कंटेंट भी इधर डाला है, और इन्होंने ISN इंडियन साइन लैंग्वेज का कंटेंट भी इधर प्रोवाइड किया है। तो किसी को भी अगर आप क्लिक करेंगे तो आप, जैसे मैंने अभी साइंस को क्लिक किया, माइक ऑफ कर लीजिए। कौन है इसको ऑफ करा दीजिए प्लीज। HRDC पीपल प्लीज एक बार देख लीजिए, उनका माइक गलती से ऑन हो गया है शायद। सो यहाँ पे क्लास वाइज कंटेंट है, और आप देख सकते हैं क्लास 8, फिर ये 7th का, 6th का, 6th 7th 8th का, क्योंकि साइंस जो है, साइंस के नाम से तो हम 6th 7th, उसके पहले तो हम उसको अभी आवर वंडरस वर्ल्ड या आवर जो EVS के नाम से जानते थे। उसके बाद वो साइंस बनती है 6th 7th 8th में आके, 9th 10th, 6th 7th 8th 9th 10th तक वो साइंस रहती है। बट क्योंकि अभी क्या किया गया है कि जो बुक्स हैं वो भी रिवाइज हो रही हैं, और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी को मर्ज करके एक सेकेंडरी लेवल बन गया आफ्टर NEP, तो दैट्स वाई इन्होंने अभी जो कंटेंट यहाँ साइंस में प्रोवाइड किया है वो 6th 7th 8th के लिए है। अब इसमें है क्या, ये सब सिमुलेटेड कंटेंट है, और वो कंटेंट है जो प्रैक्टिकल पे कराया जाता है। किसी को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वहाँ पे जाके। एक कि आप देखिएगा ये इनका माइक ना गलती से ऑन हुआ है और वो है नहीं लग रहा है। इरशाद साहब अपना माइक बंद कर दीजिए। इरशाद साहब, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, इरशाद साहब अपना माइक ऑफ कर दीजिए। फोन कर दीजिए कोई इरशाद सर को। तो इतना लिमिटेड वक्त है, ये वक्त की बर्बादी हो जाएगी। एक्चुअली यहाँ पे जब किसी भी प्रैक्टिकल कंटेंट को, हेलो यस
ठीक है, बाकी कोई उनकी मर्जी है, बनाओ बिगाड़ो मेरे को नहीं। हमको दुश्मन है, मैं हमको वो है 4-5 लड़के। अगर उन्हें हमारे चाहते हैं हमारे राय चाहते हैं जबरदस्ती तो रखियो, फिर कहा देखिए वो खाली वहाँ झूठ बोल रहे कि हमारी लेकिन वो बहुत कमीना है। भाई साहब हमें पता है महफूज जैसा इतना कमीना इंसान आज तक हमने नहीं देखा। अगर हम हमारे उससे ताल्लुक होता ना तब तक हम उनको खुलवा देते एक गट्टा 4 आदमी में 5 आदमी बैठ के उनकी अरे वो साला वो जो है दोगला टाइप है, तुम्हारे सामने कुछ बोले जाके वहाँ साला जो है जिस थाली में खाता है उस थाली में खेत करता है। हमें मालूम है उसे, ठीक है। और अगर इसको लेके गया 3 महीने बेड पे आ जाता है, 3 महीने आ जाइए अगर ये ले गए। वो इतना हरामी है। जो एडमिन है वो इसको रिमूव कर दें। अरे वो साले का बाप Somebody please call Irshad sir and ask him to उनका नंबर किसी के पास हो तो कॉल कर लीजिए। वो जो है वो उधर से रिमूव कर दीजिए ना, उधर से रिमूव कर दीजिए मैम। मदर सर उधर से रिमूव कर दीजिए, ये अच्छा नहीं लग रहा कि वो बहुत मदर भाई ज्यादा नहीं जाएगा। और वो मतलब कि घर वाले तुम्हारे समझते नहीं है, घर वाले इनके चक्कर में इनके दुश्मनी करते हैं। मदर भाई रिमूव कर दीजिए उधर से। थोड़ा सब्र करो। क्या HRDC का कोई है यहाँ पे? HRDC का कोई है? राजेश सर उधर से रिमूव करिए। राजेश सर मुझे लग रहा है कि हो सकता है सर नहीं होंगे। चलिए कुछ आवाज थोड़ी कम हुई है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। मेरा टाइम खत्म हो जाएगा नहीं तो। ये जो ओल एप्स है, किसी भी प्रैक्टिकल के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, किसी भी जो आइकन बना हुआ है किसी भी क्लास का या किसी भी सब्जेक्ट का, उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें आएंगी। इसमें क्या है, सबसे पहले वो थ्योरी देते हैं जो भी प्रैक्टिकल है। जैसे ये जो प्रैक्टिकल है ये फूड ग्रेन के स्टोरेज के ऊपर है कि कैसे उनका स्टोरेज किया जाए। क्या ये टॉपिक है, साइंस का टॉपिक है, पहला ही टॉपिक है जो फूड ग्रेन के स्टोरेज पे है। तो उसकी थ्योरी वो प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद वो उस प्रैक्टिकल कंटेंट का प्रोसीजर प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद वो एक सिमुलेशन भी देते हैं। सिमुलेशन जो होता है वो बेसिकली किसी भी काम को आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में जब हम करेंगे, वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में कैसे किया जाए, उसके लिए जो पूरी प्रोसेस है वो, जैसे ये आजकल सिमुलेशन तो ड्राइविंग सिखाने के लिए भी यूज किया जा रहा है कि बिल्कुल सेम जैसे कि जब आप ड्राइव करते उस पे सड़क पे जा करके तो आपको जिस तरह का एहसास होता, सेम वैसे ही एहसास होता है सिमुलेटर पे। और किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। भाई आप चलाना सीख रहे हैं और किसी को कोई लड़ भिड़ जाए तो दिक्कत हो सकती है ना, तो इसके लिए वो सिमुलेटर यूज किया जाता है। ऐसे ही जो प्रैक्टिकल कंटेंट है वो यूज करने का बेसिक मकसद ये होता है कि हम एक कंट्राइव्ड सिचुएशन में चीजों को प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि लैब में होने वाली जो परेशानियां हैं वो ना हो। और दूसरी बात, रिसोर्सेज की कमी है आजकल तो रिसोर्सेज की कमी के में भी हम बच्चों को डिप्रीव ना कर दें प्रैक्टिकल कंटेंट से। बच्चों को प्रैक्टिकल कंटेंट को यूज करने का एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जा सके, चाहे भले ही वो सिमुलेटेड सिचुएशन में हो। तो ये जो सिमुलेशंस हैं इनमें आप उस एक्टिविटी को प्रॉपरली कर सकते हैं। और कैसे करना है अगर वो जानना है तो यहाँ पे उन्होंने एक ये वीडियो भी प्रोवाइड किया है, वो करते हुए उस वीडियो को आप प्ले करके पूरी प्रोसेस को देख सकते हैं। और फिर जो नेक्स्ट चीज है, ये हम लोगों के लिए बड़ा यूजफुल होता है टीचर्स के लिए, क्योंकि हम लोगों को अक्सर ऐसा होता है ना कि क्वेश्चंस डेवलप करने होते हैं, टॉपिक के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस डेवलप करने होते हैं। तो उन्होंने ऑब्वियसली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सबसे पहला चॉइस होता है। तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड है, बहुत सारे एमसीक्यूज विद देयर आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। प्लस उन्होंने यहाँ जो और फर्दर रिसोर्सेज इस टॉपिक से रिलेटेड हो सकते हैं उनकी लिस्ट भी दी है।
और अगर किसी भी कंटेंट के ऊपर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो आप देन एंड देयर जाके फीडबैक दे सकते हैं उस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए। तो ये जो था ना, दिस इज फॉर दोज पीपल, फॉर दोज चिल्ड्रन who are having some problem in terms of usage of internet or internet connectivity, लेकिन उनके पास मैक्सिमम जो रिसोर्सेज हैं वो एक तरह से हैं क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन विद 4G नेटवर्क है, और उसके ऊपर तो वो हैव्स वाली कैटेगरी आती है जिनके पास सब कुछ है। तो उन बच्चों के लिए तो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हैं, उनके लिए तो सब कुछ है ही। लेकिन ये जो लास्ट चाइल्ड है ना, ये जो लास्ट चाइल्ड है, दिस फेलो जिसको की कवर किया गया है, ये यहाँ पे सॉरी, ये यहाँ पे नो डिजिटल डिवाइस, इवन इसको भी नहीं छोड़ना है, इसके लिए ही गवर्नमेंट काम करती है। और ये जो प्रज्ञता गाइडलाइंस हैं, जब आप इस डॉक्यूमेंट को देखेंगे, इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर डिजिटाइजेशन के बारे में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना, तो वो तकरीबन तमाम चीजें इधर दी गई हैं। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बाद ये सिंक्रोनस क्या है जो अभी हम लोग कर रहे हैं, जैसे हम लोग अभी वीडियो कम्युनिकेशन के जरिए बात कर रहे हैं। हम अभी जो मैं कह रही हूँ उसमें अगर मैं सवाल करती हूँ तो कोई भी जवाब दे सकता है मुझे रियल टाइम, सेम टाइम पे। एसिंक्रोनस में क्या होता है, जैसे टीवी पे कोई प्रोग्राम आता है, टेलीकास्ट हुआ, टेलीकास्ट जब हो रहा है तो अगर आपको उस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई सवाल करना है तो आपको चाहे खत लिख के भेजना पड़ेगा या मेल लिखना पड़ेगा या चैट में लिखना पड़ेगा। तो इवन यूट्यूब पे है तो यूट्यूब में आप वहां पे चैट कर सकते, अगर यूट्यूब लाइव चल रहा है तब तो वो सिंक्रोनस हो जाता है। बट अगर यूट्यूब पे आपने अपलोड किया है कोई कंटेंट, उसको कोई देखता है और कोई अपना फीडबैक देता है या सवाल करता है, वो नीचे चैट बॉक्स में लिखता है, जिसको आप कभी किसी भी वक्त पे देखते हैं और फिर उसका आंसर करते हैं, तो वो एसिंक्रोनस है, क्योंकि वो रियल टाइम में आपको फीडबैक प्रोवाइड करना और आंसर प्रोवाइड करना नहीं करता। तो वो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों ही कम्युनिकेशंस बेसिकली मिलजुल करके जो डिजिटाइजेशन की प्रोसेस है उसको अपलिफ्ट करते हैं। तो ये इसके बारे में उन्होंने डिटेल दी गई है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या कौन से ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं इन तमाम बच्चों के लिए, जो पूरी कैटेगरी लिस्ट जो मैंने बताई है। सबसे पहली कैटेगरी है उन बच्चों की जो ऑफलाइन मोड में है, उनके लिए टेलीविजन एंड रेडियो। जिनको इंटरनेट की प्रॉब्लम है, टेलीविजन एंड रेडियो कैटेगरी है। पार्शियली ऑनलाइन मोड है तो कंप्यूटर और स्मार्टफोन, जब इंटरनेट मिलेगा तो उसको डाउनलोड कर लें, और उसके बाद हल्का कंटेंट, बहुत ही लाइट वेट कंटेंट, बिट साइज कम हो, ऐसा कंटेंट जिसका और वो इस तरह के फॉर्मेट्स में हो जो कि कंप्रेस्ड होता है। जो बहुत हैवी कंटेंट होता है वो नॉर्मली डाउनलोड भी नहीं हो पाता सिस्टम्स पे, तो कंप्रेस करके उसको लाइट वेट करके डाला जाए, ऐसी प्लेसेस में आराम से लोग उसको हासिल करें। और जो तीसरा कैटेगरी है जो ऑनलाइन, जिनके पास सारे तरह की फैसिलिटीज हैं। यहाँ इन्होंने यहाँ ये इसके बारे में ये स्टेट बाय लोगों का बुशरा मैम अपना माइक ऑफ कर लीजिए। इसके बाद ये इस डॉक्यूमेंट में आप नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे मॉडल लेसन प्लान्स भी हैं। प्रॉपरली ये भी बता दिया गया है कि डिजिटाइजेशन अगर कर दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि 24 घंटे आप इंटरनेट पे रहें या तो आप स्क्रीन के सामने रहें। किस उम्र के बच्चों के लिए कितनी देर डिजिटल क्लासरूम में रहना रिकमेंडेड है, कितना देर बैठ सकते हैं, अगर एज ग्रुप कम है तो, अगर एज ज्यादा है तो किस तरह बैठें, ये भी इसमें बताया गया है। मैं इसमें ये जो मैं एज वाला बता रही थी आपको, ये यहाँ पे कि प्री प्राइमरी के लिए कितनी देर की क्लास होनी चाहिए, क्लास 1 to 8 के लिए कितना होना चाहिए, 1 to 12, मतलब बेसिकली इसमें तमाम वो सवाल जो आते हैं दिमाग में उनके बारे में बताया गया है। ओके, और ये डॉक्यूमेंट रिवाइज भी होने वाला है। हम लोग इसको रिवाइज करके इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें थी जिनको ठीक करने की जरूरत है वो भी कर देंगे। बट इट्स अ लाइक वंडरफुल डॉक्यूमेंट, डाउनलोड करके रख लीजिएगा इसको। और जितनी भी चीजें, क्योंकि मेरे पास तो वक्त
कम है, बट मैं आपको इसका एड्रेस बता दिया मैंने, ताकि जितनी चीजें हैं वो सब, उन सभी इनिशिएटिव्स का आपको पता होना चाहिए। उससे क्या होगा कि कभी भी आपको पूछा गया कि इस सिचुएशन में क्या करें, भाई हमारे क्लास में एक ऑटिस्टिक बच्चा है, अब मैं क्या करूं, उसको क्या डिजिटाइजेशन कराऊं, या मेरी क्लास में तो एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है, उसे क्या मैं डिजिटाइजेशन कराऊं, ऐसे सवाल अक्सर होते हैं ना टीचर्स के। हर के लिए, हर तरह के बच्चे के लिए, क्योंकि अभी इंक्लूजन का जो टाइम है, इंक्लूसिव सोसाइटी डेवलप करने के लिए हम किसी भी बच्चे को छोड़ ही नहीं सकते, वो ऑटिस्टिक हो, वो डिस्लेक्सिक हो, वो डिस्ग्राफिया का शिकार हो, या वो कोई भी तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार हो, उसको टैप करना, उसको कैसे मैनेज करना है, दिस इज समथिंग विच वी कैन आस्क द गवर्नमेंट कि आप बताओ, आप कैसे, आपने कहा इंक्लूजन लाओ, कैसे ले आए इंक्लूजन, हमारी क्लास में तो एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है, कैसे उसको डिजिटली पढ़ा दें, तो गवर्नमेंट ने उस कब का उपाय दिया है। मेरी क्लास में तो एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, मैं कैसे करूं उसको, टीचर अगर ये कहता है तो उसका आंसर है, और कुछ आंसर्स यहाँ पे हैं और कुछ का आंसर मैं अभी आपको बता देती हूँ कहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोगों ने कुछ डायग्राम्स दिए, फोटोज की, कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं इवन व्हेन वी आर डिजिटाइज्ड। जब डिजिटल वर्ल्ड में भी हम पहुंचे हुए हैं तो हम कैसे अपने आप को चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं, व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ सिटिंग एंड यूजिंग द डिजिटल इक्विपमेंट, कि हमारे को प्रॉब्लम्स ना हो, कैसे बैठें, किस तरह खड़े होकर के हम पढ़ा लें, कब हम ऐसा करें कि हम थोड़ा सा मूव कर लें ताकि ब्लड सर्कुलेशन होता रहे, आंखों पे असर ना पड़े। बफेलो हम्प यहाँ पे आ जाता है ना, ये पोर्शन ऐसे झुकाए झुकाए बफेलो हम्प कहते हैं उसको, वो ना आ जाए। सो इसके लिए अगर हम बच्चे को थोड़ा बताएंगे और उसकी जो सीट्स हैं वो एर्गोनॉमिकली डिजाइन हो, इस तरह की सीट्स हो जो कि नुकसानदेह ना हो, साइज ऐसा हो कुर्सी का, मेज का, जिससे कि अगर बच्चा डिजिटल वर्ल्ड में एंटर करता है तो उसको नुकसान ना करे, वो सब यहाँ पे बताया गया है। और इसमें जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मेंटल वेलनेस की बात भी हुई है। मेंटल वेलनेस के लिए एक साथ साथ मतलब मुझे लग रहा है मैं क्या क्या बता दूं, एक और इनिशिएटिव है मेंटल वेलनेस के लिए जिसका नाम है मनोदर्पण। साथ में बताती चलती हूँ वरना टाइम ही निकल जाएगा। मनोदर्पण इज ऑल्सो फॉर स्कूल एजुकेशन, और इसकी जो शुरुआत थी वो इस कोरोना के टाइम पे की गई थी ताकि बच्चों को डी स्ट्रेस किया जा सके, साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए ये बनाया गया था। लेकिन उसके बाद जब कोरोना खत्म हो गया तभी भी ये कहा गया कि इसे बंद नहीं किया जाए। ये रिक्वेस्ट आई टीचर्स की। इस पे है क्या, इस पे बहुत कुछ है, एक बार इसको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। इस पे बहुत सारे वीडियोस भी हैं जो कि बच्चे की जो बेसिक प्रॉब्लम होती है ना, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, इस तरह के जो इश्यूज होते हैं उससे रिलेटेड जो सॉल्यूशंस हैं उनको वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है। और इसमें नीचे की तरफ आप जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ना एक आपको यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर है, ये टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जो 24/7 काम करता है। इस पे अगर कोई ऐसा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई बच्चा आपसे बोलता है, बड़ी टीडियस सी समस्या आपको बताता है और आपके पास उसका आंसर नहीं होता, या कभी आपको किसी ऐसी सिचुएशन में आप पड़ जाते हैं जहां समझ नहीं आ रहा कि मेरे पास तो इसका आंसर नहीं है, सो टू होम टू अप्रोच, जिसको अप्रोच करने के बाद कोई ऐसा प्रॉब्लम भी ना आए कि अरे उसको बता दिया तो कहीं वो किसी और को ना बता दे, ऐसा वाला प्रॉब्लम ना आए। सो आप नेविगेट कर सकते हैं दिस पर्टिकुलर प्लेस where there is this helpline number which can be approached any time of the day and they provide solutions. They actually वो बात कर लेते हैं। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ बात करने से भी सॉल्व हो जाती हैं, और मुझे पता है कि ये काम करता है, ये बहुत अच्छे से चल रहा है, क्योंकि जो इसके हेड हैं जो इसको डील करते हैं वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, एनसीईआरटी में ही इसका भी सेंटर है। तो उनसे मैं पूछती रहती हूँ कि आजकल क्या चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि इस पे हम लोग काफी सारा काम कर रहे हैं और ये हेल्पलाइंस जो हैं ये अच्छी तरह काम करती हैं। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी यूजफुल। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो साइकोलॉजिकल इश्यूज को डील करने के लिए, एग्जामिनेशन स्ट्रेस को डील करने के लिए, या कोई भी तरह के ऐसे इश्यूज जो एडोलेसेंट चिल्ड्रन की
जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए रिक्वायर्ड है, उनके लिए ये एक अच्छा सा सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इसके बाद देखिए, मैं प्रज्ञता डॉक्यूमेंट पे वापस आकर यहाँ पे आपको एक दो चीजें और बता दूं। इस डॉक्यूमेंट में जब आप नीचे आएंगे, इसको स्क्रॉल करते चलिएगा, जब आप नीचे आएंगे ना, तो आपको और जो सारे इनिशिएटिव्स, मैंने पीएमई विद्या को आपको बताया था, जो और इनिशिएटिव्स हैं, जैसे दीक्षा है, दीक्षा की भी बात हम लोगों ने कर ली थी, और स्क्रॉल करेंगे तो ये आया स्वयं प्लेटफॉर्म, विच इज द प्लेस फॉर एजुकेशनल कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। जो स्कूल लेवल के कोर्सेज हैं वो एनसीईआरटी और एनआईओएस डेवलप करता है, और फॉर सीनियर सेकेंडरी लेवल बहुत सारे कोर्सेज एनसीईआरटी ने डेवलप किए हुए हैं, और फॉर सेकेंडरी लेवल, इवन फॉर सीनियर सेकेंडरी लेवल, फॉर ब्रिज कोर्सेज, जो ऐसे कोर्सेज जो ड्रॉप आउट बच्चों के लिए होते हैं, वो बहुत सारे एनआईओएस ने डेवलप किए हुए हैं। हायर एजुकेशन के तो आप सब लोग जानते ही हैं, एएमयू कितने सारे कोर्सेज डेवलप कर रहा है, हम लोग बहुत सारे कोर्सेज डेवलप कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री। Thousands of courses are getting developed in higher education, but for school education, the mandate is with NIOS and NCERT, and they have developed many. दो chemistry के courses तो मैंने develop किए थे वहाँ पे 11th और 12th के लिए, जब मैं वहाँ पे काम करती थी। तो वो courses चल रहे हैं। Obviously उसमें नाम मेरा नहीं होगा क्योंकि अब तो मैं वहाँ हूँ नहीं, तो वो दूसरे teachers को मिल गया वो। तो जो शुरुआती जो पेजेस हैं वहाँ पे हो सकता है मॉड्यूल्स में अंदर नाम मेरा हो, बट ऊपर हो सकता है किसी और का नाम होगा। सो 11th और 12th का फर्स्ट कोर्स जो केमिस्ट्री का है, 11th क्लास का कोर्स नंबर 1 और 12th क्लास का कोर्स नंबर 1, वो मैंने डेवलप किया था। सो ये जो था, ये बेसिकली स्वयं प्लेटफॉर्म के बारे में उन्होंने डिटेल दिया है। इसकी साइट को विजिट करके आप उन कोर्सेज को बच्चों को ऑफर करने के लिए हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर जो मैं रेडियो के बारे में बात कर रही थी, वो क्लिक हो गया, जस्ट अ मिनट। नीचे आ जाते हैं, ये है। तो इसमें जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये रेडियो एंड कम्युनिटी रेडियो के बारे में डिस्कशन है, जिसमें जो मैंने रेडियो वाहिनी का जिक्र किया था। रेडियो वाहिनी के अंतर्गत बहुत सारे रेडियो स्टेशंस बने हैं। एनआईओएस अपना एक ट्रांसपॉन्डर चलाता है, इग्नू के पास भी है। एनसीईआरटी का तो पूरा एक रेडियो सेक्शन है। रेडियो सेक्शन बहुत अच्छी तरह काम करता है उनका, और एनसीईआरटी के रेडियो सेक्शन के लिए मैंने बहुत सारा प्रोग्राम डेवलप किया। वो लोग क्या करते हैं, टीचर्स को बुला करके, जो प्रैक्टिसिंग टीचर्स हैं उनको बुला करके जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक दे देते हैं, उसके ऊपर डिस्कशंस होते हैं। या फिर एक बहुत बड़ा काम जो वो लोग कर रहे हैं, एनसीईआरटी कर रही है, वो है डेवलपमेंट ऑफ ऑडियो बुक्स, और वो भी डेजी फॉर्मेट में। डेजी क्या है? डेजी बेसिकली एक कंसोर्शियम है जो ब्लाइंड बच्चों के लिए काम करती है। वो ऐसा करते हैं कि जो टेक्स्ट बुक्स है ना, जो किताबें हैं, उनको वो टीचर्स जो उस टॉप पेपर को पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, साइंस ऐसे नहीं होगा कि कोई बड़ी अच्छी आवाज में बात करता है तो उसको बुलाएं और किताब पढ़वा लें, नहीं। वो टीचर का जो वे होता है जिसमें वो कंटेंट को डिस्कस करता है, वो डिफरेंट होता है। एक एंकर जो करेगा वो अलग होगा, उसमें वो सोल नहीं होगी, उसमें रूह नहीं होगी। तो वो टीचर को बुलाते हैं जो प्रैक्टिसिंग टीचर होता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उस क्लास का पढ़ाने वाला, और बुक को वो एक्सप्लेनेटरी वे में रीड करवाते हैं। तो अब एक साइंस टीचर अगर साइंस की किताब को पढ़ रहा है और एक्सप्लेन कर रहा है तो उसमें फील आएगा ना, तो वो उसको रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, प्रॉपर ऑडियो रिकॉर्डिंग इन अ प्रॉपर स्टूडियो। कोई ऑब्नॉक्शियस साउंड नहीं आएगा इधर से उधर से, और वो ऑडियो बुक के फॉर्म में उधर प्रेजेंट हो जाती है। अब उस ऑडियो बुक को कोई भी ब्लाइंड बच्चा, और उसको डेजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब होता क्या है डेजी फॉर्मेट में अलग, जो एक नॉर्मल बुक में और डेजी बुक में अलग होगा। जो डेजी बुक्स होती हैं, उन बुक्स को जो ब्लाइंड बच्चे हैं ना, वो बिना किसी की मदद के एक्सेस कर सकते हैं। डेजी का जो फॉर्मेट है वो ऐसा है कि बच्चे उस बुक को अपने आप खोल सकते हैं, अपने आप उस बुक को मैनेज कर सकते हैं, आगे बढ़ाना सब कुछ। वो बड़ा यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट है। तो जो डेजी बुक्स हैं उनको डेवलप करना और फिर उनको रेडियो पे
ब्रॉडकास्ट करना, ये सारा काम भी गवर्नमेंट करवाती है। और उसका यहाँ पे जिक्र है कि कैसे वो होता है, कौन सा ऐसा पोर्टल है जहाँ पे वो सब प्रोवाइड किया जाता है। स्पेशली कंटेंट फॉर विजुअली एंड हियरिंग इम्पेयर्ड, इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। अगर आप आज की डेट में एनसीईआरटी आएंगे तो आपको कोई भी ऐसा कंटेंट जो नॉर्मल तरह से डेवलप हो रहा है वो आपको हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए इंडियन साइन लैंग्वेज में डेवलप होता हुआ भी दिखेगा। और ये कोशिश की जा रही है कि हर एक कंटेंट के ऊपर, जैसे लेक्चर है कोई, तो लेक्चर के ऊपर छोटा सा एक विंडो हो जिसमें कि साइन लैंग्वेज में कोई जो बोल रही है वो साइन लैंग्वेज में भी वो वहां पे इशारे से उस कंटेंट को डिलीवर कर रहे हो, उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए। तो आईएसएल में बहुत सारा काम किया जा रहा है। देन टेक्टाइल मटेरियल बहुत सारा डेवलप किया जा रहा है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए होता है। टेक्टाइल मटेरियल को डेवलप करने के लिए उन लोगों ने, एनसीईआरटी ने और जो अन्य संस्थाएं हैं, उन्होंने 3D मैपिंग को 3D प्रिंटिंग को का सहारा लिया है। 3D प्रिंटिंग में क्या होता है कि हम उभरा हुआ कंटेंट, टेक्टाइल कंटेंट बना सकते हैं। तो एक तरीका होता है ब्रेल एम्बॉसिंग का और दूसरा है 3D प्रिंटिंग का, और इसके लिए वो लोग हेल्प लेते हैं आईआईटी दिल्ली की। तो वो कंटेंट डेवलप किया जा रहा है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों, और उसको बल्कि जो एनसीईआरटी का किट डिपार्टमेंट है, DEK, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल किट्स, आप वहां जाएंगे तो वहां आपको किट्स मिलेंगी, तकरीबन हर एक सब्जेक्ट के लिए किट्स हैं। उन किट्स को भी ऐसे कोशिश की जा रही है कि वो यूजर फ्रेंडली हो, एंड दैट यूजर कैन बी ऑफ डाइवर्स टाइप, एवरी यूजर, विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, हर तरह के यूजर के लिए, एंड द अदर यूजर्स। सो वो कंटेंट को इस तरह से डेवलप किया जा रहा है। देयर आर बुक्स which are having now braille embossing. There are books which are having QR codes. जो QR codes हैं आप उनको स्कैन करेंगे तो वो इंडियन साइन लैंग्वेज का कंटेंट वहां पे चल जाएगा आपकी डिवाइस में। तो इस तरह के एफर्ट्स करके कंटेंट को यूजर फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं शुरू में बता रही थी कि इस चीज को भी सब्स्टिट्यूट गवर्नमेंट को देना है कि ये जो कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं इनकी दुकान थोड़ी हल्की हो जाए। बंद कर पाना तो शायद मुश्किल है क्योंकि लोग ही नहीं मानेंगे, बट एक्चुअली कुछ ऐसा दे दिया जाए जो कि हेल्पफुल हो उन बच्चों के लिए जो नहीं जाना चाहते कोचिंग में। सो द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड दिस ट्रिपल, ये आईआईटी पाल या फिर आईआईटी के जो प्रोफेसर्स हैं उनकी मदद से जो जेईई की तैयारी करवाने के लिए पोर्टल को बनाना, और जो पर्सनलाइज अडेप्टिव कंटेंट PAL, दीक्षा PAL, दीक्षा पे भी जो पर्सनलाइज अडेप्टिव कंटेंट है उसको डेवलप करके बच्चों की तैयारी के लिए बहुत सारे सवाल जो पॉसिबल हैं, जो कंपटीशन में आ सकते हैं। हम लोगों को बोला गया था कि एक टॉपिक लीजिए और उस पे मैक्सिमम पॉसिबल 300-400 क्वेश्चंस बना दीजिए, हर वो सवाल जो हो सकता है इस टॉपिक से। ऑब्वियसली मेरा एरिया बायोलॉजी है तो मैंने बायोलॉजी का कंटेंट डेवलप किया था 11th और 12th के लिए। एक टॉपिक उठाया और उस पे जो भी हो सकता है, जिस भी तरह का सवाल बन सकता है, वो सब बना के दिया, which was placed on Diksha Pal. And even you have seen on the Swayam Prabha portal, there was a section for competitive exams. So ये सब कुछ ऐसा है जो for school children है। And then इस particular section में नीचे आपको कुछ concept maps मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैप्स रिलेटेड टू ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसके बारे में मैं ज्यादा बात अभी करने का मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं इस पर पूरा सेशन लेना चाहती हूँ कि कैसे हम टीचर्स को इक्विप कर सकते हैं फॉर कंटेंट जनरेशन विद द हेल्प ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स टूल्स। फ्री टूल्स के जरिए हम कैसे साइंस का कंटेंट बना सकते हैं, सोशल साइंस का कंटेंट बना सकते हैं, हम वो क्या कर सकते हैं कंटेंट जनरेशन के लिए जो कि टूल्स की मदद से हो, वो भी फ्री टूल्स की मदद से। और ये जो कॉन्सेप्ट मैप है ये है फॉर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज कि वो क्या होते हैं, कैसे बन जाता है कोई नॉर्मल रिसोर्स ओपन एजुकेशनल रिसोर्स कैसे बन जाता है। अगर कोई किसी का ये सवाल हो कि एक नॉर्मल रिसोर्स OER कैसे बन जाता है, तो उसके लिए हम लोग लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं जो अपने आप ही दिया जाता है। एक संस्था है जिसका नाम है क्रिएटिव कॉमन्स जो कि लाइसेंस प्रोवाइड करने का काम करती है, और वो बेसिकली लाइसेंसेस उसने दे दिया है, उसको सिर्फ हमें चुनना होता है और पेस्ट करना होता है कंटेंट के ऊपर।
ये सारी चीजें ये मेक श्योर करने के लिए होती है कि जो भी कंटेंट बन रहा है वो फ्रीली लोग यूज कर पाए। ऐसा ना हो कि बहुत अच्छा कंटेंट है लेकिन जब उसको यूज करने के लिए जाए बच्चा तो उसको पता चले कि ये तो हमें परमिशन चाहिए या सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, पैसे पे करने पड़ेंगे, तो उस केस में तो फिर वो डिस्करेज होगा ना। और जरूरी नहीं कि हर बच्चा इस पोजीशन में हो कि वो पैसे खर्च कर सके। और जब टैक्स पेयर्स के पैसे से ये सारा कुछ हो रहा है तो फर्दर क्यों पैसा लेना है? सो दैट्स व्हाई दिस फिलॉसफी was accepted by the government that how we can provide help to the students which is free of cost, and even there is no any requirement of getting any type of permission from anyone. So ये प्रज्ञता डॉक्यूमेंट को जरूर देखिएगा। फिर एक चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टीचर्स ने स्पेशल एजुकेशन के एरिया में तो कुछ बातें पूछनी चाहिए हैं, तो मैं आपको एक चीज और दिखा देती हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। ये जो दूसरा स्पेशल एजुकेशन का सेक्शन है, एक स्पेशल एजुकेशन और दूसरा एक्सेसिबिलिटी साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्योंकि जब भी हम डिजिटल वर्ल्ड में जाते हैं तो ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिनको हमें पीछे नहीं कर सकते, ये फ्रंट पे होनी चाहिए। तो एक्सेसिबिलिटी इन स्कूल करिकुलम के ऊपर आपको कुछ भी चाहिए, जो भी स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट चाहिए उसके लिए इधर जो वो बोला है इसमें एक्सेसिबिलिटी लिखा हुआ है, उस पे आ जाइएगा। ISL में कंटेंट हो या आपको ब्रेल एम्बॉस्ड कंटेंट के बारे में जानना है या आपको लैंग्वेज, क्योंकि देखिए इंक्लूजन इन टर्म्स ऑफ मल्टीलिंगुअलिटी या लैंग्वेज भी आता है, तो भाषा के केस में अगर आपको कुछ कंटेंट चाहिए, ऑगमेंटेड रियलिटी से रिलेटेड, या जो मैंने टैक्टाइल की बात की थी, टैक्टाइल कंटेंट की बात की थी, या एक पोर्टल है जो कि इसका नाम प्रशस्त है जो हैंडीकैप के लिए डेवलप किया गया है, तो प्रशस्त पोर्टल के बारे में जानकारी चाहिए, यू जस्ट हैव टू कम टू दिस प्लेस। एक्सेसिबिलिटी वाले सेक्शन पे आपको आना है। और इसके बाद जो ये एक सेक्शन है इसको भी मैं दिखाती चलती हूँ, ये वाला साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। दिस इज अगेन समथिंग जिसको आप पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप सब कुछ कर रहे हैं, साइबर वर्ल्ड में घूम फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई ऐसा थ्रेटनिंग केस हो, तो बच्चों को अवेयर कर दें जरूर से। यहाँ पे ऐसा कंटेंट बनाया गया है साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड कि अवेयरनेस के लिए ना कोई बहुत जार्गनाइज्ड या बहुत ही टेढ़ा क्लिष्ट भाषा में नहीं कुछ प्रोवाइड किया गया, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में हैंडआउट्स बनाए गए हैं जो जिनको आराम से पढ़ा जा सकता है। अब ये जैसे सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन टाइम्स ऑफ कोविड-19, या ये जैसे है बी सेफ इन साइबर वर्ल्ड फॉर स्टूडेंट्स, साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये सब बस इसको ओपन करने के लिए क्लिक करना है। इसको कोई भी चीज को क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी, सो इट विल जस्ट ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पे सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन टाइम्स ऑफ कोविड-19 जो है, मतलब डिजिटल सिनेरियो, कोविड-19 में क्या कर रहे थे हम लोग, डिजिटली पढ़ रहे थे ना, वो तमाम इश्यूज जो हो सकते हैं इफ वी आर ऑनलाइन, एंड हाउ टू बी सेफ इन दोज टाइम्स, इन दोज सिचुएशंस, थिंग्स आर रिटन हियर। क्या करें, क्या करना चाहिए। अब ये होता है ना, अक्सर बच्चे आके पूछते हैं कि मैम हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हम क्या करें, तो आपको उनको आंसर करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप कंस्ट्रक्ट करें और आप स्पेशलाइज्ड नहीं है उस केस में, तो आप गलत कुछ उसको इंफॉर्मेशन दे दें, तो यू जस्ट हैव टू रेफर देम टू दिस पर्टिकुलर प्लेस जो कि सरकार ने बनाया। अगर आपने ये रेफर किया है तो कोई आपको कभी कुछ नहीं कहेगा कि आपने क्या बता दिया जी, आपने तो हमारे बच्चे को ये मिसगाइड कर दिया, कोई ये नहीं कहेगा आकर के। व्हाई? बिकॉज थिंग्स आर डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट and these are for this providing help to the children. You just have to take them to the place where these are available. So these are those things which are for the purpose of providing help, assistance to teachers. टीचर को इक्विप करना ये भी सरकार का काम है, तो इसलिए ये सारा जो मटेरियल है ये यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डला हुआ है, ये और ये तमाम भाषाओं में भी, उर्दू में नहीं है अभी, उर्दू में भी ट्रांसलेशन होगा। एक्चुअली तरीका तो ये होता है कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तीनों में ट्रांसलेशन हो, लेकिन चूंकि उर्दू के कम लोग हैं, रेस्ट्रिक्टेड ऐसे लोग जो उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तीनों जानते हों, या इंग्लिश और उर्दू जानते हों और टेक्नोलॉजी भी जानते हों, वो ट्रांसलेशन करें, तो थोड़े से कम है दिल्ली में।
तो कोशिश की जा रही है कि 22 भाषाओं में ट्रांसलेशन हो इन तमाम रिसोर्सेज का, ताकि वो हर कोई अपनी मदर टंग में हासिल कर सके। बट द ओनली थिंग इज दैट द ट्रांसलेशन शुड बी वैलिड। नहीं तो कोई ऐसे लोग जो सिर्फ ट्रांसलेशन करते हैं, अगर वो करेंगे तो फिर वो अर्थ का अनर्थ भी कर सकते हैं ना। तो दैट्स व्हाई दीज थिंग्स टेक टाइम। सो दैट्स व्हाई the resources are right now available in English and Hindi. So this is something which is very important. याद रखिए, कभी भी साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी इशू हो, फर्स्ट प्लेस टू विजिट इज दिस पर्टिकुलर प्लेस। मैक्सिमम सॉल्यूशंस आपको यहीं पे मिल जाएंगे। कोई ऐसा टर्मिनोलॉजी है, कोई ऐसा सिचुएशन है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे और समझ नहीं आ रहा क्या करें, डूज एंड डोंट्स का जो ये सेक्शन है इस पे आ जाइए, यू विल डेफिनेटली गेट सम सॉर्ट ऑफ रेस्पाइट। सो इसमें एक्सेसिबिलिटी वाले में और ये दोनों स्पेशलाइज्ड, जहाँ पे स्पेशल एजुकेशन का केस हो, यहाँ पे या साइबर सेफ्टी का केस हो, वहाँ पे आप पहुंच सकते हैं। अब देखिए, अभी मेरे पास तो बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे टाइम का भी ध्यान रखना है। तो अब अगर आपको कोई स्पेसिफिक सवाल पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। वालेकुम अस्सलाम जी। I'm Zainab from Sayyid Hamid Senior Secondary School. I just want your views on the fact कि जब गवर्नमेंट both at the state and the central level इतना एक्सपर्टाइज, इतना मनी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कंटेंट के लिए क्रिएट कर रही है और हो रहा है, तो फिर जो आज का स्टूडेंट है वो कमर्शियल कंटेंट, जैसे आई वुड नॉट लाइक टू नेम, उसकी तरफ क्यों जा रहा है? हाँ, बिल्कुल सही बात। ऐसा सवाल है आपका कि इसको मैं बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन कह सकती हूँ। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है ना, वो मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये जो ये वाली ट्रेनिंग्स है, मैंने कुछ नहीं तो वो सीवी में तो बहुत कम लिखा है, कुछ नहीं तो हजारों स्कूल्स में दी होगी, कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन। ऑफलाइन भी जो दिल्ली में है वो ऑफलाइन दे देते हैं और बाकी ऑनलाइन। और वहां के टीचर्स फिर कहते हैं कि अब हम लोग बताएंगे। पता नहीं है टीचर्स को बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद आप में से भी बहुत से लोगों ने पहली बार सुनी, क्योंकि जो ये इनिशिएटिव्स है ना, ये हो रहे हैं इनका अभी, जिसे मैंने एआई का एक भी इनिशिएटिव डिस्कस नहीं कर पाई मैं, जबकि वो भी बहुत सारे भारत सरकार ने बहुत सारा डेवलप किया है। हमको नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी आगे जम करके किसी भी चैट जीपीटी और उसके पास। Why? Because the government of India is already working on developing things. So the point is that awareness नहीं है। और जो ये आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, ये इतना एडवर्टीजमेंट, इनके पास कंटेंट नहीं होता, क्योंकि हम लोगों को बहुत बार अप्रोच करते हैं लेकिन हम लोग नहीं जाते, बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन द गवर्नमेंट सेक्टर, तो हम लोग नहीं जाते इनके पास कंटेंट नहीं है, इनके पास बहुत अच्छे जो एक क्रीम मटेरियल है वो नहीं है, बट ये एडवर्टीजमेंट में बहुत पैसा लगाते हैं। एंड ये इस तरह से जो इनका जो ज्यादातर फोकस होता है ना, वो यूजर फ्रेंडली कंटेंट डेवलप करने पे होता है, अट्रैक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली। जो अट्रैक्टिव कंटेंट होगा उस पे बच्चे बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, उनको लगता है ये तो बहुत जल्दी हमें सोल्यूशन दे देगा, एंड दैट्स व्हाई दे गो इन अ लाइक टू फिक्स देम, दे गो टू देम, बट वो फिक्स नहीं करते, बहुत कम रिजल्ट देते हैं वो। लेकिन अगर जो गवर्नमेंट का डेवलप किया हुआ कंटेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट तो एडवर्टीजमेंट करती नहीं है, मैं जब वहां थी तो मैं अक्सर ये चीज पूछती थी, ये सवाल मैं करती थी कि हम लोग इतना सब कुछ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के रात दिन लगते हैं भाई। आपको पता है कुछ दिन ऐसे होते थे एनसीईआरटी में, जब सैटरडे संडे तो बहुत कॉमन बात थी कि हम लोग को जाना पड़ता था, छुट्टी का दिन, ईद के दिन, जब एनआरओईआर को लॉन्च होना था तो ईद पड़ी, अगस्त में लॉन्च हुआ था वो, मेरे ख्याल से ये ईद हम अप्रैल या मई, कुछ दिन पहले ही ईद पड़ी। मुझे बोला गया कि आप ऐसे कीजिएगा कि इन द सेकंड हाफ यू कैन कम। आई सेड सर इट्स अ मेजर फेस्टिवल, नहीं आ सकती मैं। They said that okay, my joint director said, and I was very enthusiastic about the project, तो मैं शायद आने को भी तैयार हो जाती, तो उन्होंने मेरे से कहा कि नहीं ऐसा है कि तुम मत आना, बट अगले दिन जब आओगी तो सेवई लेके आना। मैंने कहा ओके बिल्कुल मैं लेके आ जाऊंगी। सो दैट वाज द वे इन विच वी वर वर्किंग। तो हमें भी लगता था कि ये सबको पता नहीं है, हम लोग जाके जहाँ पे ट्रेनिंग दे के आते हैं बस उतने लोगों को पता चलता है, एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं होता है। तो the government never popularizes in that way, वो सिर्फ ट्रेनिंग देती है, टीचर्स की ट्रेनिंग देती है,
और टीचर्स की ट्रेनिंग जो है वो भी कैस्केड मोड में देती है कि कुछ मेंटर टीचर्स को, कुछ की रिसोर्स पर्संस को ट्रेन कर देंगे, फिर वो लोग जाएंगे और फर्दर ट्रेन करेंगे। वो अखबारों में इश्तिहार नहीं निकलवाते, या जैसे ये आकाश और फिटजी और ये लोग जो जिस तरह से एडवर्टीजमेंट करते हैं और उस पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, वो सरकार नहीं करती। सरकार सिर्फ डेवलपमेंट करती है। तो वो प्रॉब्लम बेसिक होती है कि लोगों को पता ही नहीं है। अब इंडियन साइन लैंग्वेज का जो कंटेंट है वो किसी प्राइवेट बॉडी के पास भी अभी नहीं है, इसलिए लोग आ रहे हैं। फॉर ISL कंटेंट दे आर कमिंग टू द गवर्नमेंट। जिस दिन प्राइवेट बॉडीज को पता चला कि इसके भी तो बहुत सारे टेकर्स हैं, they will in like come and start doing that also. So the only point is that we as a teacher, we have this particular responsibility to make ourselves aware कि क्या क्या है, उसको जानिए, उसको यूज कीजिए और लोगों से यूज करवाइए। तब आपका जो ये लगता है ना कि अट्रैक्टिव नहीं, अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि वो पैकेजिंग पे ध्यान नहीं, सरकार पैकेजिंग पे ध्यान नहीं देती। अब जो सवाल मैंने आपको बताया ना, PAL दीक्षा पाल में जो क्वेश्चंस बनाए हैं, अब एक टॉपिक उठाया क्योंकि बायोलॉजी का मैंने खुद बनाया तो इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ। उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो JEE हो। अब बायोलॉजी तो JEE में आता नहीं है तो वो नीट ही समझिए, वो सब बना के दे दिया है, वो सारा उधर आ जाएगा। लेकिन बच्चे को आना तो पड़ेगा ना वहां पे। तो हम लोग सिर्फ ये NCERT या गवर्नमेंट सिर्फ ये करती है कि उनके टीचर्स को बता देती कि देखो ये है, बाकी टीचर्स नेविगेट करें और वो बच्चों को बताएं। तो अवेयरनेस इज समथिंग विच इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू मेक देम अवेयर, टू मेक आवरसेल्व्स अवेयर एंड देन परकुलेट दैट अवेयरनेस टू देम। बाकी एडवर्टीजमेंट और पैकेजिंग तो सरकारी कंटेंट की नहीं हो सकती, वो है ही नहीं मैंडेट सरकार का। ओके, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई जस्ट थॉट ऑफ कि मैं करूंगी डिस्कस। जैसे टूल्स के बारे में मैंने सोचा था, लेकिन वो अब वक्त नहीं है। किसी का कोई और सवाल है तो Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. I have a question. I'm Sara Siddiqui from Abdullah School. Ma'am, are these government websites, also developing content for the preparation of competitive exams like NEET and BTech? Are they developing content? हाँ बिल्कुल, यस, वही तो मैं बता रही हूँ। जो दीक्षा का जो PAL है ना, पाल मतलब पर्सनलाइज एडेप्टिव लर्निंग के लिए जो कंटेंट डेवलप हो रहा है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और मैंने बीच में अभी स्वयं प्रभा की वेबसाइट दिखाई थी ना, स्वयं प्रभा पे आप जब जाएंगे, ये वाला ये स्वयं प्रभा पे जब आप जाएंगे तो जिसका होम पेज है ना, इसके होम पेज पे चले जाइए। इसके होम पेज पे देखिए 3 सेक्शंस है, स्कूल, हायर एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, क्लिक कर लीजिए, मैं क्लिक कर देती हूँ, ये आ गया। बल्कि ये पूरा एक प्रोजेक्ट है साथी के नाम से, और इस पे इन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के डेवलपमेंट के लिए और हर एक मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, बैंकिंग, सबके लिए ये जो कंटेंट है इसको यहाँ पे प्रॉपर चैनल्स में डाला हुआ है। और ये जो चैनल्स है ना, इनका जो भी कंटेंट टेलीकास्ट हो जाता है वो सबका सब यहाँ पे आर्काइव हो जाता है। और दूसरी चीज मैं दिखाऊं आपको, एक और चीज, जैसे मैं अपना दिखा देती हूँ आपको। मेरा जो कंटेंट है वो IIT मद्रास और IIT कानपुर के चैनल्स पे आता है, तो उनकी वो YouTube पे डाल देते हैं। तो अब जैसे मेरा जो कंटेंट है, ये जैसे मेरे अभी करीब 170 वीडियोस जो है वो टेलीकास्ट ये जो है ये B.Ed के लिए, B.Ed का जो कंटेंट है। अब जैसे ये द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें ये जो पूरा पेपर होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, B.Ed का भी पेपर है, उसके 23 वीडियोस हैं। अब ये सारे के सारे जो वीडियोस हैं लेक्चर्स हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हुए कि वो प्रोसेस क्या है, और उसमें सब जो प्रॉपरली डायग्राम्स के जरिए और बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों को डेवलप करने के लिए बताया गया, वो सब बना करके ये टीवी पे टेलीकास्ट भी होता है। और प्लस ये सारा जो कंटेंट है ये वंस द टेलीकास्ट इज डन, एक बार वो रिपीट टेलीकास्ट होता रहता है, लेकिन जब पहली बार टेलीकास्ट हो जाता है उसके बाद वो कंटेंट जो है यूट्यूब के उनके चैनल्स पे डाल दिया जाता है। इससे फायदा क्या होता है कि कोई ऐसा बच्चा जिसको फिर से उसको देखना है तो वो आराम से जा करके यूट्यूब पे भी कंटेंट को हासिल कर सकता है। ओके, तो ऐसे जो
मटेरियल है उसकी तो कोई कमी नहीं है, बस आपको अवेयर करना है। एक बार बच्चे को बता दीजिए, उसके बाद फिर ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर वो अपने आप एक्सप्लोर कर लेगा और उसको इस्तेमाल भी करेगा। Okay, thank you so much, ma'am. Ma'am, are there specific YouTube channels for these content? YouTube, you are saying that it will be shared on the YouTube later at later stages. जो स्पेसिफिक मैंने अभी आपको स्वयं प्रभा दिखाया था ना, स्वयं प्रभा की Yes, ma'am, वेबसाइट पे yes. आप जाएंगे जब, तो उस पे शुरू में होम पेज पे ही 3 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन है स्कूल एजुकेशन, दूसरा सेक्शन है हायर एजुकेशन और तीसरा सेक्शन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। उस पे क्लिक करना है, ठीक है। जो मेरे वाले थे, मेरे वाले वो मेरा नाम डालेंगे ना, AERUM, यूट्यूब पे जाएंगे मेरा नाम डालेंगे तो भी आ जाएंगे सारे, क्योंकि मेरा बीएड के लिए है, वो अभी आप लोगों के लिए शायद यूजफुल नहीं है। वो बीएड के स्टूडेंट, मैं हायर एजुकेशन में डील करती हूँ, तो वो बीएड के बच्चों के लिए, बीएड और एमएड के स्टूडेंट्स के लिए वो यूजफुल है। Okay, thank you so much. This is Nusrat from Sayyid Hamid School. जी I want to. मैम मुझे ये पूछना था कि is there any platform or the content for the visually challenged students? हाँ, मैंने अभी एनसीईआरटी की साइट पे जाकर के वो एक्सेसिबिलिटी वाला सेक्शन दिखाया था। Yes मैम। एक्सेसिबिलिटी वाले मुझे वापस उसको स्क्रीन, आप लोग चले जाइएगा एनसीईआरटी साइट पे जाइएगा, शुरू में ही वहाँ एक्सेसिबिलिटी करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो वहाँ पे क्या किया गया है कि एक तो वो डेजी बुक्स हैं, सारी की सारी ऑडियो बुक्स, वो सब विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए। डेजी कंसोर्शियम ही बना है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। इवन आपको मैं बताऊं, जो चेयरपर्सन है ना डॉक्टर मिनोत्रा, ही हिमसेल्फ इज अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, जो डेजी कंसोर्शियम के चेयरपर्सन है। वो सारा कंटेंट इज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स व्हिच आर डेवलप्ड जो टैक्टाइल, उसके लिए मंगवानी पड़ेगी। Ma'am, you talk about the 3D printing material. So these materials are available online also so that we can purchase them. हाँ बिल्कुल, आपको साइट पे जाना है, वहाँ जो टैक्टाइल देखिए, जो टैक्टाइल मैप्स हैं और उससे रिलेटेड जो मटेरियल है, उसके लिए आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, एनसीईआरटी को ऑर्डर करना पड़ेगा, वो आपको भेज देती है फिर बुक। मैम साइंस का कंटेंट भी उनके पास अवेलेबल है? क्योंकि वो टैक्टाइल है ना, छू करके बच्चे। मैम टेक्सटाइल्स वी हैव, आई जस्ट नो अबाउट द 3D प्रिंटिंग चार्ट्स मैम। 3D प्रिंटेड चार्ट्स, जो 3D प्रिंटेड चार्ट्स है वो भी तो आपको एक्चुअल चार्ट चाहिए होंगे ना। यस मैम। तो उसके लिए अगर आपको एक्चुअल चार्ट चाहिए तब तो आपको परचेज करना पड़ेगा वहां से, एनसीईआरटी से मंगा लीजिए। लेकिन अगर आपको वो अवेलेबल है, बस ये बात पूछ रही थी। हाँ, अगर आपको डेजी बुक्स हैं, ये सब फ्री में है, सिर्फ आपको जो हार्ड कॉपी में कंटेंट चाहिए होगा ऑब्वियसली वो तो खरीदना पड़ेगा ना। अगर आपको हार्ड कॉपी में नहीं चाहिए, सॉफ्ट में चाहिए, तो वो सब फ्री में अवेलेबल है, और वहां पे एक्सेसिबिलिटी वाले सेक्शन में जाने पे आपको वो मिलेगा। कहाँ से खरीदना होगा? थैंक यू सो मच। पीरियोडिक टेबल वगैरह एनसीईआरटी की साइट पे जाने के बाद, जब आप एनसीईआरटी की साइट पे जाएंगे, उसमें एक्सेसिबिलिटी वाले सेक्शन में चले जाइएगा, वहां पे पूरी डिटेल लिखी हुई है। Okay. Ma'am, there's one more thing I want to add, and I would request this from Sajid sir also to please arrange one more session. So whatever has been left, तो आपसे हमें काफी information मिली. It was a very informative session. And AI वगैरह पे जो आप बता रही हैं कि कुछ information रह गई है, तो अगर हमारे इस कोर्स के दौरान एक और सेशन अरेंज हो जाए आपका, तो we will be very thankful. And it was nice Sadia ma'am, joining your session. Sadia ma'am, we will try. In fact, we will try. If there will be any possibility, we will request for one more session from Iram ma'am. Right? Sadia ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, ma'am. जी सर, जी सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? Thank you so much, sir. Okay, thank you. So और किसी का कोई क्वेश्चन है? Thank you so much, sir. Thank you. Hello. Yes, yes, sir. So, my name is Mohammed Mansoor Khan from ST School, AMU Aligarh. I am teaching computer as a TGT over there. I have a query regarding plagiarism, and one more thing, ma'am. Like I have come to know that when you switch your institutions, the stuff that you had provided over there by some like you had given by your name, and after you left over that institution, that stuff has been available by some other teacher's name. So it may be an example of plagiarism or not? Thank you. No. See,
in case of massive open online courses, the courses are actually run by the institution. So if some teacher is working there, suppose I was there in NCERT and I have developed a course for NCERT. So that course was launched, but the course was launched with my name as a mentor of that course. I was there as listed as the faculty. When I joined Jamia Millia Islamia, it's not their problem, it's my problem that I have came to another institution, but the course has to go on. Na? So this course, the chemistry 1 and 2, those 2 courses were given to 2 professors of NCERT. So Professor R.K. Parashar is right now taking care of that course. So क्योंकि हर साल जब वो कोर्स को दोबारा लॉन्च किया जाता है स्टूडेंट्स को, तो उससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, उससे रिलेटेड जो भी कुछ प्रोवाइड करना है वो कोई टीचर ही करेगा ना. अब मैं तो नहीं जाके बार बार करूंगी, तो इसलिए उसको किसी और टीचर को दिया जाता है. तो इस वजह से वो दूसरे टीचर को दे दिया गया. और इसके अलावा पीजी के भी बहुत से कोर्सेज मैंने किए थे. तो उसमें जो एक कोर्स था जो इंडिया का पहला कोर्स है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप इन स्कूल एजुकेशन, जो एमएड लेवल के लिए था. मैं जब थी वहां तो 2 साइकिल चला, लेकिन मेरे आने के बाद कोई लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसमें बहुत सारा काम करना पड़ता है हर साल. तो इसलिए वो कोर्स नहीं चल रहा. लेकिन केमिस्ट्री के जो 2 कोर्सेज डेवलप किए थे, क्योंकि उसको लेने के लिए लोग तैयार थे कि हाँ ठीक है हम कर देंगे, हम भी मेहनत करेंगे हर साल उसके ऊपर, तो वो चल रहा है. तो नहीं, इसमें कोई प्लेजरिज्म का इशू नहीं है. प्लेजरिज्म का इशू तब होता जब उसको उन्होंने हर जगह से मेरा नाम, मतलब जो मेंटर है वो कोई दूसरा मेंटरिंग जो कर रहा है उसका नाम है, लेकिन जो कोर्स कंटेंट जो डेवलप किया था, मुझे उम्मीद है कि शायद वहां से नाम नहीं हटाया गया होगा. तो अगर वो हटाया गया है तो ये कि इंस्टीट्यूशन के लिए डेवलप्ड कंटेंट है ना, तो इसलिए कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं होती है. ओके, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ये सब होता है. थैंक यू मैम, थैंक यू. राइट, एनी अदर क्वेश्चंस? अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. जी जमशेद Yes, my साहब name is बोलिए. Jamshed Alam Khan. Myself, I am a visually challenged person. ओके. मैं यहाँ पे मैम को बताना चाह रहा था सिर्फ बस कि आपके बीच में एक विजुअली चैलेंज मौजूद है यहाँ पे. जी, और जी. बहुत अच्छी जानकारी दी, सारा कुछ डेली वगैरह के बारे में जो कुछ भी बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत शुक्रिया सर. जमशेद साहब, उसके लिए आप मेरा शुक्रिया अदा करिए. मैं लाया था एरम मैम को. जी, आपका तो शुक्रिया ही है. आप ही की वजह से चल रहा है. लेकिन अभी मैम और आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. और इस वक्त मैं अहमदी इसमें एबी के गर्ल्स में हूँ एज अ टीजीटी. जी. ओके जमशेद. चलिए मैम, थैंक यू वेरी मच. नो मोर क्वेश्चंस आर देयर? किसी और का है कोई क्वेश्चन? So I think that's enough. Thank you very much, Eram ma'am. It was a really very nice session, and I was connected throughout your whole session, in fact, and myself also learned a lot. Thank you so much, ma'am. In fact, just I wanted to add one thing, that बहुत Sathi बहुत शुक्रिया project. मैम. Yes. So that Sathi project that Thank has you been so much, started ma'am. by IIT Kanpur. Thank In you fact, so much, बहुत ma'am. ही अच्छा है. और Thank you, ma'am. इसमें मैं भी गया था, मैंने भी कंट्रीब्यूट किया था, और बड़े ही लर्निंग प्रोफेसर्स उसमें आए थे. जी. तो मुझे लगता है कि अब आने वाले कुछ दिनों में हमारे टीचर्स के लिए बहुत क्वालिटी का मटेरियल वो है. वाकई में वो बहुत ही अच्छा मटेरियल है. और जो किसी ने क्वेश्चन पूछा था प्राइवेट पब्लिशर्स वगैरह के ताल्लुक से, तो आप यकीन मानिए कि जिस लेवल का कंटेंट आईआईटी कानपुर में साथी प्रोजेक्ट में तैयार हो रहा है, वैसा तो हिंदुस्तान में है ही नहीं. बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कहता हूँ. Exactly. लेकिन the only problem is that कि people are not aware about. Not aware. Yes. तो मैं बता रही हूँ साजिद भाई, जो कंटेंट हम लोग, मैं अभी जनवरी की बात है ये, एनसीईआरटी ने बिल्कुल कॉन्फिस्केट किया हुआ था मेरे को, और मैंने ये बोल दिया था छुट्टी नहीं लूंगी, मैं अपनी क्लास लेके जाऊंगी. तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे भी हो आ जाइए. वो कंटेंट जो हम लोगों ने डेवलप करके दिया है, उस कंटेंट में को पढ़ने के बाद कोई और चीज पढ़ने की जरूरत है. एक टॉपिक से रिलेटेड 300-400 पॉसिबल क्वेश्चंस को वहां दे दिया है. अब बच्चा वो सारा पढ़ लेता है तो उसको कहाँ कुछ और वेरी लर्नेड प्रोफेसर्स वेर इनवाइटेड. वीडियो वगैरह उनकी हुई, मैंने भी जाकर के वहां पर 2-4 लेक्चर. आपको कुछ शामिल जी.
Okay. So, साजिद सर, yes, मैं yes, मैम को मैम एक चीज क्या और कुछ कहना चाह रहा हूँ, कुछ अमाउंट जो है वो क्योंकि मैम उसमें है क्या मौजूद तो वो कर सकती हैं थोड़ा सा। ये जो फीस के नहीं कुछ कम किया एप्स जा आपने बताए हैं मैम, जी यस मैम, yes, Jamshed साहब continue please. ये जो एप्स आपने बताए हैं इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ये एक्सेसिबल नहीं होता है कहीं कहीं पे। कंटेंट खोलने के बाद हमारा जो सॉफ्टवेयर है, टॉकबैक है या जॉज है, उसको रीड हाँ नहीं करता है प्रॉपरली। तो या जो पीडीएफ है, जैसे आपने बताया ई पाठशाला बहुत 2018 से पहले से मैं जानता हूँ उसको जी 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 और मैं यूज करता हूँ, लेकिन उसका पीडीएफ कोई कोई तो रीड हो जाता है, कोई कोई नहीं रीड करता है। हाँ और हाँ ई टेक्स्ट हम लोगों को ऑडियो से ज्यादा अच्छा लगता है, हाँ क्योंकि EPUB उसमें स्पेलिंग वगैरह सारी चीजें दिख जाती हैं, पता चल जाती हैं। जी तो जी जी ई टेक्स्ट इज बेटर देन ऑडियो, इसलिए इसको ई टेक्स्ट को थोड़ा सा पीडीएफ जो है बिल्कुल। उसको अच्छा मैं करने की कोशिश करें, हाँ ये ताकि वो इस पे भी काम हो रहा है सर, मैं बताऊं आपको, इस जी पे काम हो रहा है। EPUB जी एक्चुअली EPUB के लिए सिर्फ थोड़ा सा एक जी मसला ये जी होता है जी, EPUB के लिए ना रीडर्स लगाने पड़ते हैं, और वो जो जी एडॉन्स होते हैं, तो आपको तो मालूम है, आप तो ये यूज करते हैं, लेकिन जी बहुत सारे जी लोगों को नहीं पता होता कि उसमें एड ऑन लगाना पड़ेगा। तो जिसके पास जी एड ऑन नहीं होता उसको थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो वो कोशिश की जा रही है कि उन एड ऑन्स को वहां पे रेडीली अवेलेबल करा दिया जाए, तो वो जैसे कि जी उठाएं और बस उसको अपने सिस्टम में डाल लें, तो उसके ऊपर काम चल रहा है जी जी। अच्छा, इससे पहले मैं अहमदी स्कूल में था तो वहां पे बहुत काम किया था, लेकिन अब इससे हट चुका हूँ मैं बिल्कुल। जी जी साजिद सर, चलिए मैम, थैंक यू वेरी मच। सलामकुम सर। हाँ रज़िया मैम बोलिए। साजिद सर, एक चीज ये हमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी कि जो हम विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो हमें जी। साइंस में थोड़ा सा और आइडियाज चाहिए थे, ताकि हमें कुछ ऐसी हार्ड फॉर्म में चीजें मिल जाएं, जैसे पीरियोडिक टेबल है या और भी बहुत सी चीजें हैं, ताकि हमारे लिए थोड़ा हेल्पफुल हो। Okay रज़िया मैम, we will see. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। So thank you very much Iram मैम। जी एक्चुअली मुझे एक क्लास पहुंचना है सर, और थोड़ा सा देर हो रही है, अगर कोई फर्दर क्वेश्चंस हो तो मुझे लिख के भेज सकते हैं। नो मैम, एक थैंक यू छोटी सी वेरी मच। रिक्वेस्ट होती है कि अगर लेवल पर कोई इसको इन प्रोग्राम्स को खासतौर से PAL को पॉपुलराइज करने की, स्पेशली एट द लेवल ऑफ यूनिवर्सिटीज, एट द लेवल ऑफ स्कूल्स हो सके, तो ये अवेयरनेस इन अ अफर्मेटिव वे ये पहुंच जाए सब जगह। तो ये मैं चाह रही थी कि अगर हायर लेवल्स पर ये हो सके तो। थैंक यू सो मच मैम। Okay Sadia ma'am, I think Iram ma'am has got your point, so definitely whatever she can do she will do. So thank you very much Iram ma'am. It was very interactive session and I think my participants have been much benefited, so hopefully we will meet again. Thank you very much once more. Thank you. So participants, you have Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. join at 12. Yeah, join at 12. Another resource person is about to come at 12. Thank you very much. Thank you, ma'am. यस सर, इंशाल्लाह। Thank you so much. Sajid sir, Yes ma'am, sir, actually I